क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान की पार्को पाइपलाइन, फीफा वर्ल्ड कप 2022 इन कतर, दुबई, रियाद और दोहा मेट्रो और मस्जिद अल हरम प्रोजेक्ट के पीछे क्या कॉमनैलिटी है? इन तमाम प्रोजेक्ट्स पे एक पाकिस्तानी कंपनी ने काम किया है. And I want to tell you more about them. Avanceon Limited is a Pakistani industrial automation company listed on the Pakistan Stock Exchange, and together with its sister concern Octopus Digital, they're both worth over 37 billion rupees. Last year, सिर्फ Avanceon ने 58 million dollars का रेवेन्यू किया था और इस साल इनकी तीसरी सालगिरह पे इन्होंने 100 million dollars का टारगेट बनाया है रेवेन्यू का under their Road to 100 plan. Avanceon operates in Pakistan, the Middle East, Africa, and the United States, and today I'm at their regional office in Dubai to talk to their founder and CEO, Bakhtiar Wain, to understand how he built his empire and his thoughts on what the future holds for Pakistan and the region. Bakhtiar Saab, thank you so much for being part of the show. Thank you for inviting me. मैं थोड़ा सा स्टार्ट करूँगा जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आप पैदा किधर हुए और अर्ली लाइफ आपने कहाँ पे गुजारी? पैदा मैं बहावलपुर में हुआ Right. बिकॉज माई फादर यूज टू बी देयर. वो पढ़ाते थे सादिक पब्लिक स्कूल में. राइट. सो देन ही मूव्ड टू सरगोदा. Right. सो जो मेन लाइफ गुजारी वो सरगोदा में ही गुजारी. अच्छा. ग्रोइंग अप. और वहाँ A4 स्कूल में PF मॉडल स्कूल. माई फादर वॉज द प्रिंसिपल ऑफ दैट स्कूल. So I went to that school also. So he was an educator all his life? All his life. Was your mother working as well or she was a homemaker? No, my mother was not working. Interesting. And so FSC तक आपका वहीं पे schooling हुई या फिर then you जी moved to? FSC I think first year वहाँ हुई और फिर then I moved to FC College Lahore. अच्छा. So a year and a half I was in FC College and then to Engineering University. Interesting. And what year was this जो आपका high school का था? FC College वाला? High school का till 76. Right. And till 78 in 76 to 78 in FC College. Right. And then In Engineering University Lahore. Engineering University being UET? UET Lahore. वो कैसी थी उस ज़माने में? उस ज़माने में बड़े उसके हालात मतलब किस तरह आप it मैं depends on what you're asking. So I've had a lot of guests from the 80s जो कि UET से graduate किए और वो कहते थे कि बस जी उस वक्त तो डंडा होता था और स्टूडेंट यूनियन होता था और पता नहीं जमीयत और पता नहीं किस किस के फड्डे चल रहे होते थे और 4 साल की डिग्री 7 साल में हाँ होती तो थी. we did it in 6 years. अच्छा. हाँ 4 साल की डिग्री. तो जब मैंने ज्वाइन ही किया तो I think the university was closed due to some riots. It was some political. I think it was the time of Bhutto and his going away or whatever or the coup. Right. तो Turbulence peak पे थी. तो जैसे ही वो we joined, so the university was closed for about 6 months. So the start was quite auspicious. फिर वो ये चलता रहता था. It was not a very good time. I mean, so on and off with all of that turbulence, अगर आप as a student उसके अंदर गए थे 6 साल में आपने डिग्री कंप्लीट की, how was the education part of it? Like was it just कि यार बस डिग्री, क्योंकि मॉडर्न डे में ये ख्याल आता है कि जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियाँ होती हैं वो तो बस एक फोटोकॉपी मशीन की तरह डिग्रियाँ छाप रही हैं. आप लोगों के टाइम में ठीक है टर्बुलेंस थी, बट क्या एक्चुअल में जो एजुकेशन जिस टाइम पे हो रही थी वो एक्चुअल इम्पार्ट की? It was in parts. Some of the parts of that education, some teachers were outstanding. अच्छा. And then they would make it an effort and make it a point कि उन्होंने वो पढ़ाना ही है और वो ट्रांसफ़र करनी है नॉलेज. लेकिन जब ऐसे हालात हों तो some people don't even do that. So it was a mixed bag. चूँकि जब टर्मोइल होगा तो वो कुछ लोग फिर उसका एडवांटेज लेके वो होते थे. लेकिन जनरली इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. द गुड थिंग अबाउट दोज डेज वाज, जो कि मैं अमूमन कहता हूँ कि उस वक्त ये यूनिवर्सिटीज़ वर अ वेरी होमोजेनस सोसाइटी. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? होमोजेनस बिकॉज देखिए जिस तरह अब एक से एन एग्जांपल वुड बी जिस तरह वैसे ही एजुकेशन डिवाइड हो गई है A level, O level और दूसरा. So those guys, a part of the society or one kind of students never go to even colleges. So if you say FC College, so I would say 30% or 20% of the kids don't even see a college like FC College or government college or a college where everybody of every walk of society comes in. Right. तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी भी उस वक्त उसी तरह की थी. सारे लोग आते थे. अमीर का बच्चा भी है, गरीब का बच्चा भी है. हाँ, तो उसके साथ अगर जो कुछ तो लर्निंग आपने एजुकेशन की करनी है
और कुछ दूसरी social learning है सोशल basically. लर्निंग तो वो बहुत थी. एंड देन अग्रीड सम ऑफ दी होती नहीं थी क्लासेस, डिले हो जाते थे एग्जाम, ये सब कुछ चलता था. लेकिन जनरली इट वाज एन इंटरेस्टिंग टाइम टू स्पेंड, आई वुड से. अगर मैं आपसे पूछूं आपका बैच उस वक्त मेरा ख्याल है क्या हो 30-40 लोगों का होगा इंजीनियरिंग का? नहीं 250-300 तो सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थे. अच्छा. No, it's still, I mean, with the UET used to have a huge batch. And are you still connected to friends from university? Some of them, जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं उनसे तो बिल्कुल कनेक्टेड है. हमारा वो चैट ग्रुप भी है, Right. जो हम रूममेट्स थे, एंड वी लाइक 6 or 8 who were together during those 4 years. We are still connected. If I were to ask you to look back, 250 का बैच था उसमें से let's assume कि 200 एक certain time पे graduate किए होंगे. Do you think they were fairly successful? Most of them? देखिए, that's a very interesting question. Very successful. Really? Oh, most of them? A lot of them. I mean, some are PhDs, some are, I mean, went abroad. So on scholarships बहुत होते थे. I got a scholarship. I didn't go. It was up till PhD. But then I started a job, and somehow there were some reasons that I didn't go. But all of them are very successful. So even with all the point that I'm trying to make here is कि इससे ज़्यादा बुरा टाइम तो नहीं हो सकता ना. हम आज की यूनिवर्सिटियों में कहते हैं कि यार कितना मसाइल है, आप कह रहे हैं कि वहाँ पे डंडा बरदार भी थे, सियासत भी थी, सारा कुछ था. But those individuals were able to make themselves successful throughout that turbulent time. A lot of them. And it's मैं हैरान होता हूँ कि किस किस लेवल पे हैं. कहीं जॉब करता रहा, अब सारे रिटायर हो रहे हैं, लेकिन all of them have done very well. One of my roommate retired as the MD of OGDCL. He probably was the first one who joined as a trainee engineer in OGDCL, did his PhD from Imperial College, all on scholarship, and went on to become an MD. तो ऐसे भी और ऐसे बहुत हैं. So you graduated in 1984. And उसके फौरन बाद what did you do? I started a job in Fauji Fertilizer, Right. and then I moved to Exxon Chemicals, and these are my two major work experiences. A little while in ICI, but these are the two major work. और कितने साल तकरीबन ये जॉब्स किए आपने? 4 years. अच्छा. Between 4 years आपने सारी तीनों स्विच कर ली थी? हाँ, वो तीसरी तो बहुत थोड़ी थी, लेकिन मतलब है कि basically yes, 4 years. What was the thought process? I mean, वो तो ये तो बड़ा करियर वाला टाइम है कि जिसमें जो है ना एक बंदा एक इदारे में घुसता है, पूरी जिंदगी वहीं से निकलता है. ये पूछते हैं कई लोग. I don't know the thought process actually. I really. Were you bored easy or? I was not a corporate guy. Right. Let me put it like that. I still am in touch with all my colleagues, my bosses, and they've been always very kind. Although सिर्फ 4 साल का में सरप्राइजिंग बात है कि 4 साल के अंदर भी आप कैसे हो, तो बहुत they've been very kind, जिनसे भी बात करूं. लेकिन कोई I was doing well there also. In fact, quite well as far as I remember. लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था. अच्छा. कि वो corporate ladder and वो जो एक पूरा atmosphere होता है, I was not cut out for that. I feel that way now. But then that's the question, right? For a lot of people, for a lot of young people, जो कि किसी जॉब पे होते हैं, seemingly वो सही भी चल रहे होते हैं, लेकिन अंदर की आवाज़ उनकी कह रही होती है कि यार ये मुझे कोई ज़्यादा इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा. लेकिन for a lot of people, वो कभी भी ये रिस्क नहीं लेंगे कि यार अगर इंटरेस्ट नहीं हो रहा ना तो लेट्स गो लेफ्ट राइट एक्सप्लोर. वो कहते हैं लगी बंदी लगी हुई है, चलो चलाते रहते हैं. माई अंडरस्टैंडिंग इज योर फादर बीइंग एजुकेशनिस्ट, you weren't loaded. Not at all. Right, so absolutely not, nothing actually. Right, so 80s आप फौजी फर्टिलाइजर को छोड़ना, एक्सॉन को छोड़ना, ये बड़े डिसीजंस हैं to be very honest for a young person. How were you able to maybe I didn't used to think yourself? that much. अच्छा. लेकिन रिस्क आसान होता है जब आप यंग हो. I think probably. Now, you know what, because a lot of time in hindsight, you can come up with a lot of philosophy and, Yeah. you know, you can talk Intellectualize about it. things. Intellectualize. That's correct. So you can intellectualize it. But I think थोड़ा सा अगर आपकी, I would say a little bit of self-confidence makes you do that, not too much intellect. But you say कि देखो, I will try out a few things and I might be back. So rather than risk taker, you were more experimental. Experimental risk. I mean, risk तो होता ही है. देखें,
रिस्क तो होता है when you're leaving a job like that. And I don't promote कि हर बंदा ये करे, क्योंकि ये जो बहुत सी है ना ऐसी बातें होती हैं कि जी हर बंदे को I mean, it's not for everyone. it's not for वो everyone. personality So, भी है, वो आपका वो भी and है. in my colleagues from there have done phenomenally well also. Right. They're very successful individuals. This was in just their own something right. that was more connected to how you were as a person. How, हाँ, तो उसमें you water flows in the direction of least resistance. So Right. you try to follow a bit of things that you've been thinking about, and that's it. Makes sense. So 4.5 years, you did these jobs. What happened next? Then my cousin, he had done his computer, he had come back, he had just started. So वो क्या कर रहे थे वहाँ? वो computer हमने it was a computer outfit, which in those days there was this little bit of revolution going on. Okay, you would the whole thing about IBM compatible computers, where you would import, you would assemble, and a very reasonably powered computer of that time. I mean, compared with आजकल के कंप्यूटर से तो वो तो मजाक होगा. तो वो एक आम आदमी की रीच में आ रहा था और आम बिजनेस की रीच में आ रहा था. तो वी वर द पायनियर्स ऑफ. सो so I joined that. It had been about, I think, a year that he had started. So I joined in as a shearer, and we took that business forward. Interesting. And my understanding is कि उस time पे ये ज़्यादा B2B चल रहा था, because Yes. like offices would be able to afford computers at the time, right? This is early 90s or late 80s. या घरों में भी जा रहा था. I bought a computer with 3 years of my saving as a bachelor. So I did the salary at that time was probably among the top 1-2 percentile in Exxon. So bonuses and all that. So I bought an XT computer at that time with my almost lifetime savings of 3 years. Interesting. तो लोग लेते थे. Why did you decide to do And that? when I bought that computer, by the way, 4G Fertilizer did not have a computer. So I mean, why did you do that? Because Out of interest. late 80s, did you Out of think उस total time interest. अगर मैं आपसे कहूँ चैनल करें वो वाली एनर्जी, आपको पता था कि यार ये जो कंप्यूटर चीज़ है ये वो दुनिया बनाएगी जो आज की दुनिया बन चुकी है? 100%. ये तो खत्म पता था. ये तो पता था कि this is I mean, the things that I could do because if Because you of your would- experience working on them, हाँ, basically. नहीं, the things that I would do in the office, and I would spend hours doing those calculations. तो सिंपल जब मैं एक्सेल अब उस वक्त होती थी लोटस 1 2 3. Right. तो मैं वो एक्सपेरिमेंट भी जब करता था मैं कहता ये तो दिस विल जस्ट बी अ टर्न अराउंड. Yeah. you know, and जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज है वो just so phenomenal. phenomenal. वो देखें अब तो you have to be extremely creative to do some productivity. वो तो स्टेप जंप थी. वो तो जो उस वक्त नहीं समझते थे, एंड दे वाज सो मच पुश बैक. आई रिमेंबर लोग हंसते थे, कहते ये कंप्यूटर खरीद लिया, क्यों खरीद लिया. बट इट वाज, इफ आई रिकॉल करेक्टली, अब ये 30-35 साल की बात है, तो इट वाज नॉट कि अच्छा मैं समझूंगा. यू कुड क्लियरली से कि इसको कभी समझ नहीं आनी, इसको समझ आएगी. Organizations who would jump to it, who would not jump to it. Right. Who would so it was a step thing at that time. Some people embraced that, Right. and some people did not, and they had to take another 10 years to embrace that. So वो मुझे तो कोई doubt नहीं था कि this is whether the business could be successful or not. That's a total different, उसकी रीजंस फ़र्क हो सकती हैं, उसमें आपने कैसा बिजनेस प्लान बनाया है वो हो सकता है, लेकिन ये चीज़ आ गई है या दुनिया तब्दील हो रही है, इस पे कोई शक नहीं था. मेक सेंस. जो बिजनेस इटसेल्फ था वो बेसिकली व्हाट यू वर डूइंग वाज कि आप हार्डवेयर को इंपोर्ट करके, सो आप हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पूरा एंड टू एंड सोल्यूशन एक आपका बहुत, हाँ, एंड टू एंड सोल्यूशन करते थे. राइट. और उसमें ट्रेनिंग भी देते थे. आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स. ये लोटस 1 2 3 का मैं आई वाज लाइक I tend to believe that I was very good at that, and बहुत corporate trainings मैंने कराई हैं, almost lot of corporates, you name it, and I would go there and train the higher management. तो उसमें हम एक 360 degrees देते थे कि सब कुछ करके देना है, but it was a very taxing thing because we didn't have capital. Right. And when we didn't have capital and we had taken a huge step to do all that, तो उसमें थोड़े तो but yes, we used to do everything. एंड यू यूज्ड टू लाइक इंपोर्ट वगैरह भी सारा आप खुद मैनेज सारा करते खुद थे. वाज दैट, आई एम ट्राइंग टू फाइंड द राइट वर्ड, बट वाज दैट प्रॉब्लमैटिक? बिकॉज आप लोग इंजीनियर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं,
सडनली नाउ यू हैव टू डील विद पोर्ट के साथ इंपोर्ट होनी है, फिर उसकी 10 पाकिस्तान की तो आसान नहीं था। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो खपें होती हैं और उसमें दरमियान में पैसे लो और पैसे ह्यूज दो। लर्निंग। और दूसरी उसमें प्रॉब्लम, जो मेजर प्रॉब्लम थी कि वी वर ऑनेस्ट, वी हैड मेड अप आवर माइंड कि हम एक पैसे की भी नहीं करेंगे, जो आप कह रहे हैं कि पैसे देने पड़ते हैं। तो उसमें बहुत मसाइल आते थे। उसमें तो उस ज़माने में तो एलसी खोलने के लिए 4 जगहों पे दफ्तरों में जाना पड़ता था। सो पीपल डोंट नो, यू हैड टू गो टू द बैंक यूज्ड टू गिव अ डॉक्यूमेंट, यू गोज टू, दे यूज्ड टू बी समथिंग कॉल्ड चेंबर ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, नॉट उससे जाके आप अप्रूवल लेते थे, फिर वो फॉरेन एक्सचेंज वो एलोकेट करते थे, फिर आप बैंक में, तो वो एक नाइटमेयर था। बट आई डोंट रिकॉल इट एज एनीथिंग दैट आई वुड से कि मैं को बहुत टॉर्चर से गुजरा हूँ। दैट वाज पार्ट ऑफ द टाइम, दैट्स इट। बट वो hassle थी। बहुत हैसल थी। और लाइक यू सेड कि वो जब आप बिल्कुल एक असूल बना लें कि मैंने इस स्टेप से चलना है, तो हैसल और बढ़ जाती है। एंड वो दिन भी बड़े डिफिकल्ट थे, वो मतलब in a way that people didn't understand. Nobody used to, I mean, why would anybody finance computer imports? And so these things, lekin that was a great opportunity to learn every process in the business. क्योंकि आपने खुद करना होता था ना, तो वो positive side was that. How long did you guys sustain this business? I think around 6 to 8 years, and then it branched off to something. And 6 to 8 years, so from the time you started till 6 years, growth किस level की हो चुकी थी? देखिए, growth तो हो रही थी, लेकिन it was, as I said, very taxing on us. It was very, and it was like we were doing a lot of things which was beyond our core expertise, like imports and all that, like you said. But we had to do that because at that time the market was not well developed. Again, I mean, a lot of mistakes that we made. I mean, of course, when you start and you have no experience of business, you just have ideas, you make tremendous amount of And mistakes. you were in your 20s, by the way, right? Of course. So you make those mistakes. And at an intellectual level, at the understanding level of business. So that's fine. Lekin, if I look back, so these were some problems that you needed to have, because what do you do if you wanted to give that solution? कि training भी कराएंगे तो तभी लोग लेंगे ना. So the idea was very good. कि जब तक आप पूरा काम करके नहीं देंगे तो कोई भी नई टेक्नोलॉजी पे नहीं. And in a lot of ways you were also like creating that demand as well. Yes. Right? वो ये नहीं था कि मार्केट में डिमांड रेडी है, आपने बस माल बेचना है और आगे निकल तो जाना. ग्रीन. तो उसकी वजह से ही देखें, वो जो सारी चीज़ें थी, उसकी वजह से जो बिजनेसेस इवॉल्व हुए और जो अब हैं, आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट स्टेपिंग स्टोन फॉर अस टू बी एबल टू डू दैट. Interesting. So 6 to 8 years आपने किया इसको, उसके बाद फिर what happened? उसको नहीं, उसी से इवॉल्व हुआ ना. देखें, इसके अंदर वी यूज्ड टू गो टू इंडस्ट्री, आई हैड इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस. द अदर पार्टनर हु वाज अ software, Amir Wain. So that business totally transformed into a software business. She led. And because I had industrial experience, उसके अंदर जो software industrial automation का part है, we started doing that. And that these both things got a lot of traction. And that was the real emergence of two new businesses that we had to chase and follow. Makes sense. 2 questions. पहला, जो आपका ये इवॉल्व होकर इंडस्ट्रियल और ऑटोमेशन का बिजनेस बना, ये पाकिस्तान में उस टाइम पे हो रहा था? उस टाइम पे? अच्छा, दूसरा ये कि हाउ डिड यू मेक दीज इंडस्ट्रियल कनेक्शंस? क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट ये है कि देखें, आज एक एवरेज इंजीनियर बच्चा निकलता है, लेट्स से उसने 2-4 साल कहीं पे नौकरी भी कर ली, उसके पास कोई बड़ा अच्छा आइडिया आ गया है, वो कह रहा है कि यार मुझे पता है, मैंने इस फैक्ट्री में काम किया है, मुझे पता है अगर मैं ये चीज़ कर दूँ तो इस फैक्ट्री को फ़ायदा होगा. लेकिन उसका ना कांस्टेंट टेंशन ये होती है कि यार मेरी तो कोई सुनेगा नहीं, सेठ को मैं कैसे समझाऊंगा, मेरी तो वो कनेक्टिविटी नहीं है कि मैं जाके अपने सोल्यूशन को सिर्फ किसी के सामने प्रेजेंट भी कर सकूं. सो डिड यू हैव दीज कनेक्शंस पहले से? बिल्कुल भी नहीं. देखें, ये एक क्वेश्चन बहुत से लोग पूछते हैं. अगर ये इशू है ना किसी को, सो देन ही शुड नॉट एंटर द बिजनेस वर्ल्ड. बिकॉज देखें, ये आइडिया को सेल करना अगर नहीं आता, एंड यू आर नॉट विलिंग टू ओपन डोर्स, एंड यू आर नॉट विलिंग टू हैक इट ऑन द रोड, देन यू आर नॉट कट आउट फॉर बिजनेस. देखिए, जब आप कोई ऐसी चीज़ शुरू करते हैं तो यू आर अलोन. आपने जाना है,
आपने किसी तरह भी होना है, किसी से मिलना है, आपने अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन बनानी है, आपने प्रूव करना है. एंड दिस होल वैल्यू प्रोपोजिशन आई मे हैव इवॉल्व्ड इनटू अ पर्सन हु कैन नाउ कम्युनिकेट much better. But at that time also, I would sit down and think about it कि मैंने पहली बात क्या करनी है. उसने अगर मुझे 5 मिनट दे दिए, टोटल 5 मिनट, तो हाउ विल आई मेक एन इम्पैक्ट. सो ये चीज़ें तो ये सिर्फ यूनिक पाकिस्तान या किसी ऐसे बच्चे के लिए नहीं जो यहाँ है, ये दिस इज यूनिक टू All over होल the world. वर्ल्ड. तो वो ये प्रॉब्लम जब कई दफ़ा बात हो ना, तो आई जैसे कहते हैं ना, थोड़ा टफ लव देता हूँ मैंने को. देखें ये अगर मसले हैं तो फिर रहने दें, फिर आपके रहने दें. देखिए, आपका आपने काम बड़ी नहीं. एक इंटरेस्टिंग बात की. आपने कहा 5 मिनट आपको अगर मिले हैं तो आपने पहले से सोचना है. आपके पास आई एम श्योर इस टाइम पे बड़े बच्चे आते होंगे कि सर मेरे पास एक आइडिया है, सर ये है वो है. इफ यू हैड टू गिव फीडबैक कि व्हाट आर द फ्यू थिंग्स जो कि दे डू इनकरेक्टली टुडे, बिकॉज आई नो आई हैव दैट एक्सपीरियंस वेयर पीपल वुड कम अप एंड दे वुड डिमांड 2 minutes ऑफ माई टाइम, बट जब वो टाइम मिलेगा ना तो उनको उस वक्त वो सोच रहे होंगे कि अच्छा मैंने बोलना क्या है, मैं तो टाइम. सो इट्स ऑल अबाउट प्रिपरेशन. देखिए, Right. अगर आप आई हैव इवन मैं कोई ऐसा नहीं कि करेक्ट. सो मैं जब जाता था मेरे पास स्क्रिप्ट लिखे होते थे. ऐसा भी हुआ है कि अच्छा सेल्स कंडक्ट कैसे करूँगा. आई लास्ट दिस क्वेश्चन, इफ ही सेज नो, व्हाट डू आई हैव टू डू. अगर उसने इससे आउट किया तो मैं So, पूरा war game करके गए पूरी हैं. वॉर गेम. मतलब नाउ दैट आई हैव लर्नड मोर, आई वुड कॉल इट अ वॉर गेम. आई डिडंट नो दैट इट वाज अ वॉर गेम. Right. देखिए, वो तो इत्तेफाक से, क्योंकि मैं तो सर्वाइवल मोड में जानता था कि मैंने ये पूछना है, हाँ. आप कैसे करेंगे. अगर मेरा कंपटीशन मल्टीनेशनल से था सिर्फ. I mean, here there is essentially a kid, right? Like a Kid. 20-something So how kid do you versus do a that? multinational. हाँ. What value are you adding? तो वो उसमें ट्रेनिंग क्या भी, so जो भी आपकी यूनिक प्रोपोजिशन है आपने वो लेके जानी है अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं. और वो बहुत दफ़ा नहीं कामयाब होगी. और आप में इतना दिल गुर्दा जज्बा होना चाहिए कि उस फेलियर को भी माने, आगे जाएं. बट यू हैव टू मेक एन ओवरऑल स्ट्रेटजी विच शुड स्पैन लाइक ईयर्स, एंड नॉट कि आपने थोड़ा सा किया ये तो नहीं होता, अब मैं क्या करूं. ऐसे नहीं हो सकता. परसिवरेंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. क्या उस टाइम पे भी ये सिचुएशन थी? आई स्पोकन टू अ लॉट ऑफ इंजीनियर्स. वो कहते हैं कि यार हमारा सेठ जो है वो तो बस जनरल इलेक्ट्रिक से कम की बात ही नहीं करता. जब तक कि कोई जो है ना दुबई का कंसल्टेंट नहीं आएगा तो वो तो पाकिस्तानियों को सीरियसली नहीं लेता. जिसमें मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो इस वजह से नहीं लेता बिकॉज वो रिस्क नहीं ले सकता. उसको ये होता है कि यार लोकल जो है वो इट्स नॉट वेरी वेल थॉट आउट. बट यू केम इन एज अ पाकिस्तानी कंपनी वर्किंग विद सम ऑफ पाकिस्तान टॉप इंडस्ट्रीज, probably competing with multinationals जो कि बड़े well established brand names थे, right? How were you able to convince your local partners that listen, we can deliver what otherwise these global brands can as well? Again, a lot of it is hindsight. Nothing succeeds more than success. जो देखिए ये मेरा रिस्पॉन्स इस पे ये है कि बहुत दफ़ा ये वैसे ही हमारा जैसे कहते हैं ना हेड ट्रैश होता है. सेठ नहीं मानता, सपोज ये एक मैं कहता हूँ दिस इज हेड ट्रैश. क्यों है? किसी ने आपको बताया हुआ है, आपने 100 दफ़ा ट्राई किया. आई विल आस्क दीज क्वेश्चंस जो आपको कहेगा कि अच्छा कितनी दफ़ा ट्राई किया, क्या आपने कोई डिफरेंट मेथडोलॉजी यूज़ की टू एड्रेस दैट. ओके, नहीं, हम तो यही पूछते कि जी ये कर देगा. तो अगर आप उस हेड ट्रैश के साथ चलते रहेंगे तो वो किसी ने आपको बताया है, आप वही आगे प्रोपोगेट कर रहे हैं. एंड दैट इज समथिंग कि जब मैं देखता हूँ ना इंडस्ट्री में कि कोई सीनियर आदमी हेड ट्रैश पास ऑन कर रहा है यंगस्टर को, आई जेन्युइनली बिलीव कि सबसे बड़ी डिससर्विस है. और ये वो क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि उनको कोई वो कहेगा नहीं यार तुम्हारी नहीं सुनेगा वो, और उसने अपने जहन में बना लिया ये. हाँ. वो जब रोज ये एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो यही बात करेगा. बेसिकली कोशिश करना ही छोड़ देता है. कोशिश करना ही छोड़ देता. तो वो आई थिंक देखें, अगर सेठ ही कहना है, अव्वल तो ये लफ्ज़ बड़ा मुझे स्ट्रेंज. देखें, वो बिजनेसमैन है. हाँ. आप ऐसे तो नहीं हो सकता कि एक आदमी बिजनेस चला रहा है और उसमें कोई चीज़ समझने की कैपेबिलिटी ना हो. ठीक है,
ओके यू कैन से कि वो तंग नज़र होगा, वो क्लोज माइंडेड होगा और सारे एट्रीब्यूट्स जो आप बता रहे हैं, लेकिन वो ये करने को तो तैयार होगा कि जो उसके बिजनेस को फायदा पहुंचाए। ये तो नहीं हो सकता ना हाँ। कि बिजनेस को फायदा भी होना है और वो नहीं। तो अगर आप जाके बॉटम लाइन ऑफर कर रहे हैं कि यार एग्जैक्टली कॉस्ट कट होगी या ऑप्टिमाइजेशन होगी या प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो दीज प्रिंसिपल थिंग्स पे तो हर बिजनेसमैन एंड देन देखिए, जिस तरह हमने ये बिजनेस में उस वक्त जब हम ये बिजनेस शुरू कर रहे थे तो बहुत सी, मैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की बात करता हूँ, सो दे वर सम कॉम्पिटिशन, दे वर न्यू एंड देन दे वर वेरी ब्राइट पीपल who were a few of them who were doing it in competition with us, probably brighter than us. I mean, हमने एक प्रिंसिपल डिसीजन लिया कि हमने हार्डवेयर पे नहीं इन्वेस्ट करना. राइट. We will use world's best equipment, ठीक है. but हमारी वैल्यू एडिशन है that we'll eliminate the engineering which comes from abroad. Okay, So- the soft component basically. All soft component, assembly, integration. So and then we realized that internationally also, the Pakistan में शायद कम, लेकिन internationally, and this is the analysis that we did at that time, कि 30% component एक project के अंदर material का होता है. Even हम उल्टे भी हो जाएं तो we cannot compete with that. They are billions of dollars. So हमारा, but yes, if we have confidence in our ability, we can fight inch to inch, foot to foot with anybody who can come from abroad and do a project. So now that was a value proposition. कबाहत क्या थी कि हमने वो सीखना था, टीम बनानी थी, इन्वेस्ट करना था ऑन ह्यूमन रिसोर्स. सो वो जब आप ये स्ट्रैटेजी, तो आपको कुछ, तो इसलिए मे बी थोड़ा फ़ायदा हो गया. हम वैल्यू तो यही डालते थे कि देखें ये तो वही आप चीज़ें तो ठीक है एवरी टाइम. सो हमारी वैल्यू ये होती थी कि वी आर अ लोकल कॉल अवे. बट येस, दे वर डाउट्स बाय द इंडस्ट्री दैट वेदर वी विल बी एबल टू डू द प्रोजेक्ट. कुछ नहीं अच्छे किए होंगे, आहिस्ता आहिस्ता. बट हमने जो अपने लिए गोल रखा वो बड़ा क्लियर रखा. ये नहीं कि हर चीज़ को रिप्लेस कर देंगे. वैल्यू प्रॉप ये थी कि एक तो आपका ओवरऑल प्रोजेक्ट सस्ते में डिलीवर होगा या सस्ते में नहीं होगा, अवेलेबिलिटी 24/7 होगी. आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. सस्ते में तो होता था. देखिए, इंजीनियरिंग कंपोनेंट हमारा उस वक्त, अब जेन्युइनली वी टेक प्रीमियम ओवर मल्टीनेशनल्स. अब आप एक्सपीरियंस का बेसिकली चार्ज नहीं, हम एक्सपीरियंस देखें, हम जितने एक्सपीरियंस होंगे और कोई जो फॉर्च्यून जो बट वी से हाउ दे कांट गिव अ सपोर्ट लाइक आवर सपोर्ट. राइट. हो ही नहीं सकता. वी आर 300 इंजीनियर्स को बाहर से आके आपको प्रपोजल दे रहा है, चाहे वो सस्ती भी है, तो इट डजंट मेक सेंस. राइट. Now we are at a position that if somebody is not invested in the market, say in Pakistan, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात आपको करता हूँ. If I am a customer, तो मुझे आप आगे देखें, come to our office and go to, I don't want to take the names of competition, but consider any 34 मतलब जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के, I would कि चलें उनको भी जाके देख लें, हमारे यहाँ भी आके देख लें. हमारे पास सपोर्ट का स्ट्रक्चर क्या है. वो आपको एक इंटरनेशनल कॉल करनी पड़ेगी. वो ज़रूर कहते हैं कि जी आप महंगे हैं, तो उनको भी इसलिए महंगे कि वी हैव इन्वेस्टेड सो मच. इफ़ आई हैव टू सेल आउटसाइड विद नो सपोर्ट, और ऐसा भी हुआ है कि कई कस्टमर से मेरी ये बात हुई, मैंने कहा अच्छा तो आप कह रहे हैं मैं अगर इस तरह बाहर जाके कोई दुकान खोल लूँ और एक ही बंदा हूँ और जाके बेचूँ, तो मुझे कोई बाहर की का मुल्क इस तरह या कोई कस्टमर इस तरह करेगा जिस तरह आप मुझे कह रहे हैं. सो जोकिंगली यू कैन से सो वी नाउ कमांड एक्चुअली प्रीमियम बिकॉज वी आर इन पाकिस्तान. इट हैज़ इन्वर्टेड. मेक सेंस. थोड़ा सा मैं आपको पुल बैक करता हूँ. आपने बोला इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन. एक्सप्लेन दैट टू मी लाइक आई वाज अ 6-year-old. कि व्हाट एग्जैक्टली वर यू डूइंग? वर यू बेसिकली हेल्पिंग businessman investors set up their industry, their new industry, या were you optimizing their existing industry? मतलब बड़ा एक सिंपल तरीके से हो क्या रहा था एक्चुअल में जो काम आपका कर. ये आपका सवाल अच्छा है. ये तो मेरी बीवी भी पूछती है कि तुम क्या करते हो. तो देखें, इसको ऐसे ले लेते हैं. देखिए, मैं कहता हूँ मेरी एक इंडस्ट्री है और मैं कागज़ बनाता हूँ. नहीं ऐसा मैं ये चीज़ें फिर वो माइंड करेंगे कुछ लोग, लेकिन बैंकरों को भी इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ और सबको. तो ऐसा ये मैं तो आई वाज जस्ट एब्जॉर्बिंग दैट हाउ आई शुड स्टार्ट विच आई हैव ऑलरेडी. देखें,
हैव यू एवर विजिटेड एन इंडस्ट्री? यस, कौन सी? टेक्सटाइल. ओके, सो टेक्सटाइल कुड बी एन एग्जाम्पल. वी डोंट डू टू मच वर्क देयर, बट अगर आप देखेंगे तो अगर आप पुरानी टेक्सटाइल में जाएंगे तो काफ़ी चीज़ें मैनुअल हो रही होती हैं. और बिल्कुल नई टेक्सटाइल में जाएं तो एक अगर स्पिनिंग है तो वो सारी एक सेंट्रल एक पैनल होता है, उसके अंदर से हर चीज़ आपको लाइटें शाइटें जलती नज़र आ रही होंगी, बट एवरीथिंग इज़ बीइंग मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय an industrial computer, you may say. We can call it logical controller, we can call it a lot of things, but that's the brain of humor, हाँ brain. So हम जो स्टार्ट हुए थे वो ये हुए थे कि हम कहते थे कि जो एग्जिस्टिंग आपकी मशीन है इसको अगर आपने अपग्रेड करना है तो वी कैन डू दैट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पार्ट. वी विल यूज ऑल द वर्ल्ड रिनाउंड लॉजिकल कंट्रोलर्स, बट उसके अंदर जो सारी प्रोग्रामिंग करनी है हम करके आपकी चीज़ों को अपग्रेड कर देंगे. दैट वॉज आवर स्टार्ट. फिर ये होता एज यू ग्रो होने तो इसी की आगे फील्ड होती है कि अगर आप किसी और इंडस्ट्री में जाएं तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री एक सेंट्रल कंट्रोल रूम से चल रही होती है. सो देन वी इवॉल्व इन टू दैट एक्सपर्टीज. सो देन इफ समबडी वाज सेटिंग अप अ न्यू इंडस्ट्री, सो वी वुड से कि आप बेशक सब चीज़ें बाहर से मंगाएं, लेकिन ये जो कंपोनेंट है इसको कार्व आउट करके, बिकॉज दिस इज़ द बिगेस्ट पेन, इसकी सपोर्ट मुश्किल होगी इसकी. सो आप कोई भी इंडस्ट्री लगा रहे हैं, इसका जो कंट्रोल सिस्टम है पूरे का पूरा, लेट अस डू दैट. सो दैट ऑल्सो मीन्स कि आपकी बेसिकली जो फैक्ट्री है या जो आपकी जो कन्वेयर बेल्ट है बेसिकली, उसकी डिज़ाइन भी पूरी की पूरी आप कंट्रोल कन्वे, हाँ, इन अ लॉट ऑफ वेज आप ऑटोमेट कर रहे हैं उसको, आप डिफाइन कर रहे हैं. वो हम उनसे डिस्कस करते हैं, और वो अगर कोई सप्लाई कर रहा है तो उससे इंफॉर्मेशन आ जाती है, तो से कन्वेयर बेल्ट स्टार्ट करनी है स्टॉप करनी है, दैट्स आवर जॉब. राइट. वो आगे फिल हो गया तो कन्वेयर, तो दिस इज all the sensors saying that okay, the bin after the conveyor belt is full, stop it. So this is all automated in our process. इंटरेस्टिंग. और वो मतलब मशीन खुद देख रही है कि यहाँ पर अब लोड ज़्यादा हो गया है तो अब इसको रोक लो. एग्जैक्टली. इंटरेस्टिंग. एंड सो द गोल हियर इज कि आप ह्यूमन रिसोर्स को मिनिमाइज कर रहे हैं ऑटोमेशन के थ्रू, या आप प्रोसेस ऑप्टिमाइज कर रहे हैं और फेलियर रेट को रिड्यूस कर रहे हैं, या क्वालिटी इंक्रीज कर रहे हैं? देखिए, अमूमन इसको लिया इस तरह जाता है कि ह्यूमन रिसोर्स कम हो जाएगा और लेबर कम हो जाएगी, और वो देखें वो एलिवेट भी हो जाते हैं बहुत दफ़ा, उनके स्किल लेवल बढ़ जाता है, वो और चीज़ें कर, बट इट इज़ द रिपीटेबिलिटी ऑफ द प्रोसेस, क्वालिटी and productivity and efficiencies. These are extremely important parameters in an industry. क्योंकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, go ahead. पाकिस्तान में मुझे लगता है कि इट्स नॉट एज मच एज द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लेबर एज द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लेबर, जिसका आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा कि यार ये बंदे को आप किस तरह ट्रस्ट करें कि उसको आपने सिखाया और काम पे लगा दिया, वर्सेज अ मशीन दैट यू कैन एक्चुअली. देखिए आप अगेन ये वो जो है ना, वो आप वही बात करें जो डॉगमास चलते रहते हैं. अच्छा, मैं इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ. सो मैं आपको एक इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस बताता हूँ. सो my wife decided to do a business of planners. You know, the notebook planners होते हैं. अच्छा, मेरा I was hard stuck on पाकिस्तान. उस टाइम के ऊपर पर्टिकुलरली डॉलर अच्छी प्राइस पे था, बाहर से माल धड़ा धड़ा आ रहा था, और जो भी अगर इस किस्म के बिजनेस में आ रहा था वो चाइना जाता था. मैंने कहा यार ऐसी की तैसी पाकिस्तान में ट्राई करेंगे, कितना ही मुश्किल है, कागज़ बना रहे हैं, माइक्रोचिप्स थोड़ी बना रहे हैं. आई वेंट टू सम ऑफ पाकिस्तान टॉप प्रिंटर्स. पहले वाले के पास हम गए तो उसमें हमें किताबें मिली, तो किताबें खोली तो उसमें मकड़ियाँ भरी पड़ी थी और चीज़ें थी. दूसरे वाले के पास गए तो उस पर कभी फिंगरप्रिंट्स आ रही हैं, कभी कुछ और आ रहा है. थर्ड फोर्थ पे जाके ऐसा हुआ कि अगर हमारे पास लेट से 5,000 पीस आ रहे हैं तो उसमें से 1/5 ऑफ द इंटायर माल वो ऐसा नहीं था कि आप बेच सकते. फुली एग्रीड. राइट. सो दैट्स वेयर माई एक्सपीरियंस वाज कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर क्वालिटी कंट्रोल ग्लोबल स्टैंडर्ड्स अभी बहुत दूर की बात है. अभी तो मैं कहूँ कि पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मैं कर लूँ, क्योंकि हमारा तो हमने वो ब्रांड बिल्ड किया था कि यार एक अगर डॉट भी लेफ्ट राइट हुआ ना तो आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट एक नया प्लानर भेजेंगे. तो उसके लिए हमारी कॉस्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था कि क्वालिटी कंट्रोल उनकी साइड से. हमें फीडबैक ये मिलता था, सर वो इंसान होते हैं, वो लड़का उसको बैठ के वो ग्लू लगा रहा होता है. देखें, आई विल नॉट डिस्काउंट दैट, लेकिन जिन ऑर्गेनाइजेशंस ने इस पे फोकस किया है, दे हैव बीन एबल टू डू दैट. एंड I will take a name of one of our customers, and I don't know, I have not taken permission, but I think they're such good customers that they would not. Tapalti. Right. Go to their, ever get a chance, they have
but improved. I mean, we have worked with them, and each and every operator knows the efficiencies, knows कि ये मेरा down. मतलब it is unbelievable how they have worked with the same operators, working with our team to elevate it to the level. मतलब उनका ये खुद idea था कि हम देख के क्या करेंगे. We should invest in screens that these guys should look at. Now these are operators who operate a tea-making machine, as per my understanding. Right. But I've been around the world and I've found very few who have that level to the shop floor that they've achieved. So, देखिए And जब आपको कोई फिर वो नजर भी आता है ना, फिर then टपाल is something जो कि मैं पाकिस्तान से जब भी आता हूँ तो मेरे सूट के साथ जो है टपाल से भरा हुआ होता है, वो फिर तो you can see the, हाँ. and there are several other customers like that. Right. So they are वो हमारे octopus के customer. But these are देखिए क्वालिटी अगर कोई समझता ही नहीं इम्पोर्टेंट, तो वो अगर प्लानर बना रहा है तो वो उसमें भी वही मसला करेगा दूसरा. लेकिन सर्वाइवल इम्पॉसिबल है आजकल दुनिया में इफ यू Don't focus on the quality. सवाल ही नहीं. Interesting. So 1994 में आपने स्टार्ट किया Avanceon essentially. हाँ, ये कोई अराउंड 94 में स्टार्ट हुआ था. Interesting. और if I were to ask you कि 94 से लेके मुझे 2024, I mean, oh by the way 20 years, हाँ, congratulations. नहीं तो 30 years. 30 years, yes. So आप लोगों की इस साल 30th anniversary भी आने जी वाली बिल्कुल होगी. बिल्कुल है. Give me a summary of what's happened since then. I mean, you started in Pakistan, you started working with a few industries. What's happened in the last 30 years? Like with For Avanceon. For Avanceon, yes. देखिए Avanceon तो एक ब्यूटीफुल मॉम एंड पॉप जिसे कहते हैं बुटीक ऑर्गेनाइजेशन थी. वी वर डूइंग वेल. देन वी स्टार्टिंग हैविंग दीज आइडियाज दैट वी हैव टू ग्रो. तो we were like at that time about a 30 engineer company, 25, 30, and then we went out looking for equity. That was the first time that we said that, okay, we have to invest some money, outside capital. Otherwise, we had just operated with organic capital. So we went around and 2002 mein, Angro invested in our company. And then the total investment was, I think, less than $1 million. So वो उस ज़माने के आप लगा लें डॉलर रेट से, तो और वो रुपीस में तो काफ़ी कम हो जाता है. मेरे ख्याल 6 करोड़ रुपए बनते हैं. हाँ, समथिंग लाइक दैट. सो वो वी बिल्ड. सो आवर प्लान विद दैट वाज कि हम एक स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी पाकिस्तान में बनाएंगे विच नोबडी हैज़, जहाँ इंजीनियर्स अच्छी तरह काम कर सकेंगे वो. एंड देन वील स्टार्ट ट्रायल इंटरनेशनल मार्केटिंग इन मिडल ईस्ट. राइट. तो हमने एक यहाँ छोटा ऑफिस लिया था जहाँ 3 लोग बैठ सकते थे. And we built an office in Pakistan as a back office. So that was our first. But in 2008, I think 2008 ke 2010, Angro decided to divest in all the non-core businesses. So we bought back our shares and we went public, I think, in उस वक्त तक हम ग्रो कर रहे थे आहिस्ता आहिस्ता. एंड वी रियलाइज्ड कि दिस business plan that we had envisaged can actually happen to scale it. So we went public, we raised some further capital, and then we expanded in the Middle East. So over the years now, we're about 500 engineers. We operate in Pakistan, Dubai, Qatar, Saudi Arabia, for Avanceon. We established a new subsidiary called Octopus. I'll come to that. हाँ, Just so a मैं little- कहता ये जर्नी तो Avanceon की है ना. So collectively about 600. So Avanceon has a, जब ये पहली इन्वेस्टमेंट हुई थी तो I think we had a revenue of I think $2 million. $50 का था ना. हाँ, तो कोई हाँ तो 100 मिलियन का हमारा रेवेन्यू था. 80 to 100 मिलियन. तो ये 40 पे मुझे इस तरह याद है $2 million. सो वी लुकिंग एट नेक्स्ट ईयर अचीविंग $100 million in order generation. That is the plan which we call Road to 100. So this has been the journey Interesting. of Avanceon in summary. Question मेरा इसमें ये है, you are an engineer, you didn't do an MBA in the process.
आईटी इंडस्ट्री के बड़े लोगों से मेरी बात होती है, वो कहते हैं कि यार पाकिस्तान में जो है ना वो मसला ये है कि बड़ी कंपनी इस वजह से नहीं बनती बिकॉज हमारे यहाँ बिजनेसमैन जो है वो नहीं घुसा. आप एज एन इंजीनियर यू डैबल्ड इन एरियाज. एक तो आपने इंस्टीट्यूशनलाइज किया वैंसियन को, आपने जाके उसमें इन्वेस्टमेंट रेस की. बड़ा वो अगेन पिछले दिनों मेरी एक आईटी कंपनी से बात हो रही थी. वो जब भी आईटी वालों से बात करें वो कहते हैं यार हमें क्यों चाहिए इन्वेस्टमेंट, हमें सोचना ही नहीं इन्वेस्टमेंट के बारे में. वो अपनी वो एक 100 बंदे की 50 बंदे की शॉप से बड़े खुश रहते हैं. यू नो दे डोंट वांट. दैट्स अ ग्रेट बिजनेस प्लान बाय द वे. आई मीन देखें, मैं ये भी कहता हूँ, and you know, you start questioning your own business plan when you expand, because expansion has its own pains. You have to understand that. Because what you've achieved already, you say, okay, I will again put that on risk and go for that. And then that is a natural cycle of a business. Some people want to go to that cycle, some people don't. And if somebody says, yeah, man, I have free cash flow, मेरा एक अच्छा business चल रहा है, I have a horizon of 10-15 years, why should I go to? No, I mean, nothing against them. My question is, how was it for you who did not have the core business experience or education? थे तो आप इंजीनियर ही ना, यू वर लर्निंग ऑन द जॉब कि अच्छा चलो यार इतना स्केल कर लिया, अच्छा चलो इन्वेस्टमेंट रेज कर लेते हैं. दैट्स द फर्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू रेज इन्वेस्टमेंट. कैसा होगा, क्या होगा, कोई बोर्ड पे आके बैठेगा, डिसीजन मेकिंग अब मैं थोड़ी सी लेट गो कर दूंगा. फिर उसके बाद IPO पे जाना, विच बेसिकली मीन्स कि यू नो देयर इज अ लॉट मोर स्क्रूटनी नाउ कमिंग इन फ्रॉम आउटसाइड. यू हैव टू बी अ लॉट मोर स्ट्रक्चर्ड. स्टार्ट में तो बंदा आई एम श्योर पहले 3-4 साल आपने बस काम किया होगा, प्रॉब्लम सॉल्व की होगी, कौन लेजर्स मेंटेन करे, कौन पेपर वर्क करे, गेट द जॉब डन वाला बंदा उससे स्टार्ट करता है. आहिस्ता आहिस्ता नाउ यू हैव टू इंस्टीट्यूशनलाइज, यू हैव टू स्ट्रक्चर इट. हाउ वाज दैट एवोल्यूशन? कोशिश तो शुरू से थी कि कुछ डॉक्यूमेंटेशन. सो आई वुड से कि अगर हम 10 लोगों की कंपनी भी थी तो दूसरे 10 लोगों की कंपनी से थोड़ा ज़्यादा डॉक्यूमेंट, आई मीन जस्ट बिकॉज प्रोसीजर्स हम लिखते थे. आई लुक एट लॉट ऑफ माई ओल्ड डॉक्यूमेंट्स एंड आई से अच्छा ये बना, अब लगता है कि क्या फजूल डॉक्यूमेंट था, लेकिन एटलीस्ट आई लुक बैक एंड से कि बनाते तो थे ना. यू हैड दैट DNA फ्रॉम द वेरी स्टार्ट थोड़ा बहुत. लेकिन आई थिंक दैट अगेन इज kind of elementary if you have to do business. देखिए, what do you mean by that? अब देखिए, आपने क्या कि जी and I was listening and बड़ा अच्छा सवाल था कि देखिए, अगर अपने आप को आप ये जो है ना कि मैं बिजनेस शुरू कर, मेरे पास टाइम नहीं, अगर आप री इन्वेंट नहीं कर रहे, आप नहीं कुछ चीज़ें सीख रहे, यू विल फेड अवे. ये कि अब मेरा बिजनेस हो गया, मेरे पास पैसे आने शुरू हो गए, ये एक स्ट्रेंज किस्म की थिंकिंग है जो आई थिंक, and you would know better after you've interviewed, those businesses will fade away, those thought leaders will fade away, and you would not hear about them after a while. तो ये तो कौन सा आदमी, तो ये कोई मेरी कोई अमेजिंग चीज़ नहीं थी. इट इज़ एन इम्पेरेटिव. आई लर्न अकाउंटिंग, उस वक्त हुआ करता भी शायद है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट. आई डिड मैनी कोर्सेज देयर. एक हफ्ते का अकाउंटिंग फॉर नॉन अकाउंटिंग, डिटेल्ड अकाउंटिंग सारा करते थे. और देखिए, जब तक आप वो नहीं सीखेंगे फाइनेंशियल ये, तो अब बड़ा एक कॉमन चीज़ है कि वो कहेंगे अच्छा आपको फ्यूचर कैश फ्लो आता है, वो क्यों नहीं आएगा. आई मीन दिस इज मेरे लिए बड़ी एक सरप्राइजिंग चीज़ होती है जब कोई पूछता है कि अच्छा आप नेट प्रेजेंट वैल्यू हाउ भाई क्यों नहीं कैलकुलेट करनी आएगी इंजीनियर को. मतलब ये कोई और अगर आप इंजीनियर में प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ तो शायद मुझे नहीं ज़रूरत. जब मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई, चाहे मैंने खुद अपने आप को, तो आई हैव टू लर्न दैट. कोई इसमें तो whenever the first time I went in front of the investors, मुझे याद है जो मैं रेज कर रहा था, I ordered 3 books from Amazon. इतनी बड़ी फ्यूचर कैश फ्लो किस तरह मॉडलिंग करनी है, एक्सेल पे कैसे. सो आई knew all the terms. And then I realized I still don't know as much. Okay. So then I talked to some of my banker friends. उन्होंने कहा कि एक और. So I know him very well. So he became, I would say, a consultant tutor. He's one of the earliest LUMS graduate, and he, for a consultancy trained, and we made a model of future cash flows, किस तरह, क्या net present value, क्या valuation का enterprise value, and then I learned. And so
अगर आपको नहीं आता, कई लोग कहते हैं सो यू हैव टू गो आउट एंड लुक फॉर इट. अभी तक यही होता है. हाउ इज इट? आई मीन आई थिंक आई हैव टू लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे. तो ये इसलिए, ये तो कोई इतनी, और देखें अगर आप इंजीनियरिंग समझ लेते हैं ना, तो ये बाकी चीज़ें समझना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है. मेक सेंस. अब इसी के साथ अगर मैं आपसे कहूँ कि व्हेन यू वेंट फॉर एन IPO इन 2010, राइट, व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस देयर एंड डिड इट नॉट स्केयर यू कि यार अब जो एक्स्ट्रा बकेट लोड्स ऑफ पेपर वर्क मुझे करना पड़ेगा पब्लिक कंपनी होने की वजह से, या बिकॉज ऑफ द एंग्रो इन्वेस्टमेंट? वो हम काफ़ी कर चुके हुए थे, बहुत कुछ कर चुके हुए थे, और हमारी ऑडिट बिल्कुल उसी लेवल की होती थी, काफ़ी कुछ कर चुके थे. लेकिन चूंकि हमने उसको एक स्केल पे लेके जाना था, तो वो एक बिजनेस डिसीजन था, और उसके अंदर एक बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट IPO का था, बिकॉज वी हैड कमिटेड स्टॉक ऑप्शंस टू आवर Employees. team. Okay. And HR is a very important component in our business. I mean, we can't take it away. That is probably the most critical component. I mean, that's your product. That's our product. So that's our raw material. Right. तो वो अगर हम बहुत डिले करते तो वो एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती. देखिए, अब आपने ये जो कमाल का आपने ना एक पॉइंट रेस किया, जो कि मैं IT वालों से, पाकिस्तान में IT का आजकल बड़ा चर्चा है, और वो मुझे बार बार आके कहते हैं कि यार रिटेंशन का प्रॉब्लम है, राइट. वो कहते हैं यार बंदा रिटेन नहीं होता. तो मेरा सवाल आता है, मैं कहता हूँ यार दुनिया में भी तो ये प्रॉब्लम है ना, ये पाकिस्तान का प्रॉब्लम तो नहीं है, फ्री मार्केट है, पीपल विल मूव. तो आप कोई इंसेंटिव स्ट्रक्चर बिल्ट इन करेंगे कि यार इफ़ यू आर लॉयल तो आप 3 साल रहोगे या 7 साल रहोगे तो इतने इन्वेस्ट होगा आपका XYZ. सो व्हेन आई आस्क देम अबाउट IPOs फॉर एग्जांपल, तो दे से कि भाई हमें तो पैसे नहीं चाहिए. तो मैं कहता हूँ इट्स नॉट जस्ट द मनी दैट you're getting, it's also the fact that there is an exit that your people might get or you might get if you at any point in time require that. थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताएं कि how important has stock options been for your employees, because I know for a fact a lot of small and medium IT companies would be listening in. एंड पाकिस्तान में मैंने लिटरली आई हैव हर्ड एन IT कंपनी से कि यार हम ये कर लेंगे कि हम ना अपने स्टाफ को कमिट कर देंगे कि हम तुम्हें अपार्टमेंट बना के दे देंगे 7 साल बाद. तो वो अगेन रियल एस्टेट के अंदर फिर से घुस जाएंगे, बट इंस्टीट्यूशनलाइज ऑन अ स्टॉक लेवल दे नॉट इंटरेस्टेड. You can talk to our HR head and some people who have there. I think it makes a huge difference. मेरा ख्याल था टाइम जब हमारी होती है attrition, कभी कभी ऐसे आते हैं, तो I was thinking maybe it's not working, but the leadership that we've built in the organization, तो वो जो tier है, that was not possible, and which is a very very big component. आपने ये भी सवाल भी पूछा था कि देखें you have to give responsibility. So जब तक आप able, confident and responsible leadership team अपने नीचे नहीं build करते, तो बहुत सी चीज़ें नहीं हो सकती. उसके लिए जो लीडरशिप है और मिडिल टीयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, उसके लिए बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया. इफ़ यू से एंट्री लेवल पे द 5 years एक्सपीरियंस, आई थिंक एज मच एज आई थिंक कि दे शुड वैल्यू इट, दे डोंट. but it's like they are different. Entry level, I wouldn't even look at entry level, right? Because they have very different incentive structures right now. They're looking at कि यार मुझे कहाँ पे work environment बेहतर मिल रहा है, कहाँ पे मेरी मर्जी का काम हो रहा है. It's the leadership, you're right, because the leadership has to work with a lot of ownership, which आप ये नहीं expect कर सकते कि यार तुम मुझे ownership दो लेकिन मैं तुम्हें कुछ return नहीं दे रहा. देखिए ये थोड़ा सा, because maybe देखिए I don't want to doubt those people who are not doing stock up, because they may be giving other options to their leadership and could be very successful. हमारे पास वो थी नहीं. Right. We thought this was a better way to reward long term मतलब जिसने service. Right. So this was our idea, and this idea is not unique. That is done all over the world. So the other thing that you have to do when you're in business, benchmark yourself. See how top companies like yours do the same thing outside your country and in a competitive world, and we realize that they do it like that. अब वो दूसरा जो आपका सवाल था कि वो क्यों नहीं करते, I don't know. I think it's the fear of the unknown. I think ज़्यादा
The reason why I find you and systems very interesting is because you're essentially new age companies perception wise, and you were able to do the IPOs and all of that, so you're leading that charge. But इसी के साथ मेरा दूसरा connected सवाल आता है कि a major problem that I find in Pakistan particularly is, हमें पता है नंबर्स आते हैं कि हमारा सेविंग्स रेट बहुत बुरा है, हमारी इन्वेस्टमेंट रेट बहुत बुरा है एज अ कंट्री, और हम जब देखते हैं कि यार बख्तियार साहब एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम ये नहीं सोचते कि यार जो 10-15 लाख मेरे पास पड़ा हुआ है वो मैं किसी तरह बख्तियार साहब के पास डालूं कि ताकि वो अपने काम को बढ़ा सकें. हम ये सोचते हैं कि यार 10-15 लाख से मैं किसी तरह बख्तियार साहब वाला काम शुरू कर देता हूँ, सस्ते में कर लूँगा, किसी तरीके से उनका कस्टमर काट लूँगा. एंड दैट सॉर्ट ऑफ economies are built on trust. Trust is the core component of what makes a successful economy. Trust होता है तो आप collaborate करते हैं. Trust होता है तो आप जो है वो consolidate करके आप scale के ऊपर जाते हैं. ट्रस्ट होता है तो आप मर्जर्स एंड एक्विजिशंस भी देखते हैं. यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा 1.5 ईंट की मस्जिद हर बंदे ने बनानी है. Nobody wants to let go of their own equity. And again, lack of trust hai, so people don't do a lot of these things. If I were to ask you, based on your experience over the last 30 years doing business in Pakistan, has raising capital been difficult? Have you ever thought about कि यार एक और कंपनी है, मैं उसको एक्वायर कर लेता हूँ, मैं अपना स्केल बढ़ा देता हूँ? Have you had these conversations? Have there been failures and challenges there? I think शुरू में तो जब हम we had started, तो ये एक्विटी रेज करना पाकिस्तान में ऐसी बातें तो थी नहीं, हम ही करते थे, लेकिन इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू रेज एक्विटी फॉर स्मॉल टेक कंपनी का. तो आप समझें कि चांस ही नहीं था उस वक्त. तो बट आई थिंक द लैंडस्केप हैज़ चेंज्ड नाउ. इफ समबडी हैज़ अ कंपेलिंग एंड दिस हैज़ चेंज्ड ओवर द लास्ट 10-15 years, and I can't complain. Whenever we had a compelling वैल्यू एंड वी रेज्ड क्या, हमने खैर 2-3 दफ़ा तो किया है. एक तो वो वी हैव मैनेज्ड. यस, इट टेक्स टाइम, यू नीड टू बी वेरी स्ट्रक्चर्ड. जहाँ बिजनेसेस लैक करते हैं कि वो सोच लिया कैपिटल रेज करना है, बट दे आर नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट इवन इन अ गुड स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन मैप. देखें ये सारी चीज़ें बड़ी क्रिटिकल होती हैं. नंबर 1. अब इन दी 3 दफ़ा हमने रेज किया. दूसरी मर्जर एंड एक्विजिशन, वी एक्वायर्ड अ कंपनी थ्रू शेयर स्वैप ऑफ दाऊद. वी वर लुकिंग एट developing a lot of machine learning and AI stuff. They had done it for 5-6 years. They may not have had that kind of commercial success, but we had a conversation and we were willing to give them that value of what they have without commercial success. तो और बहुत amicably हम 6-8-10 दफ़ा मिले, डिस्कशंस की, किस तरह बनेंगे, क्या उसको करेंगे. तो वी हैव टेकन दैट प्रोडक्ट एंड मर्ज्ड इनटू ऑक्टोपस. Interesting. Through and we bought the company and just offered shares to the sponsors there, which is Daud Group. So is this public के इसका जो नाम है कंपनी का? हाँ क्या नाम है? वो तो हमें करेंगे Empiric AI. Interesting. So they were launched in the market. No, they were a private company. अच्छा, वो अभी प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे. 35-40 people. ठीक है. They were doing international projects. Their major project was with GE, and they were doing so. Was this one of the एक announcement आई थी एंग्रो वालों की कि जी वो GE के साथ मिलके कोई मशीन लर्निंग वगैरह के ऊपर काम करते हैं? The same company. The same company. Oh, phenomenal. So that same company is now part of Octopus. Oh, fascinating. So देखिए, आप ज़्यादा बता चुप करके आदमी ऐसा काम देखें. Fascinating. अब अगर आप देखेंगे, from their side also they were top professionals who were dealing. So एक उनके वो बोर्ड के थे. He is an ex Boston का BCG के आरिफ जंजुआ, the CEO of दाऊद, वो भी अपना. तो so we had open candid डिस्कशंस के किस तरह है. और हमने ये नहीं कहा कि भाई इसका तो रेवेन्यू कम है या ये लॉस हो रहा है, या हमने तो ये देखा कि ये फ्यूचर में हमें क्या, और बड़ी एमिकेबली हमने
Again, there was a trust there, right? So that's why I'm saying the Yes. trust element is, No, trust element. very, very important. We had where they trusted you to do the right thing and you trusted them to do the right we thing. trusted them immensely, and they also. जिस तरह है कि उसी तरह उन्होंने and thankful of them, they really trusted us, and we took care of the team joined us, and we are now बल्कि हमने तो successes भी वो ले ली हैं कि दोनों products को mix करके we have Tell me taken about it forward. Octopus. What's the product? What are you doing? And commercially, where does it stand today? Interesting. Do you have any background of Octopus? I do not. देखिए ये जब Avanceon में हम एक काम करते थे कि जब ये मैंने आपको 2-3 एवोल्यूशन के स्टेप्स बताए। एक ये कि वही प्लांट को, छोटी मशीन्स को कंट्रोल कर देना, फिर पूरे प्लांट को कंट्रोल करना और उसको एक सेंट्रल कंट्रोल रूम से करना। फिर द थर्ड स्टेज इज व्हेन यू गो अप द पिरामिड एंड यू टेक ऑल द डेटा दैट इज कमिंग from the plant. So there could be 100 points which are monitoring temperature, 1,000 points which are saying machine on hai, off hai. So you take those data points and start logging them, which traditionally and to date people use proprietary and very conventional software to do that, and that's an investment that a company has to make. So the largest companies doing that software is Aviva, Schneider, Rockwell. So we used to use that when we moved up the value chain. So we would use those software tools to develop a complete information management system for the customer. And my understanding is the conventional players, and that's like millions of dollars ke licenses for from $100,000 to $1 million and whatever. But our engineering used to be on top of it. Right. And that, on the Avanceon side, that slowly and gradually became our biggest value proposition, because we used to differentiate ourselves from other automation companies with this skill. Right. कि उनकी सिर्फ ऑटोमेशन स्किल है, लेकिन कल को आपने ये करना तो जिसमें इक्विपमेंट एफिशिएंसीज, राइटिंग फार्मूलाज, प्रोसेस, सो बहुत इन डेप्थ चीज़ें हमने उसमें की. While we were using all these software, we started dabbling with cloud. तो हम कुछ डेटा क्लाउड पे ले जाते थे, and then we opened up the databases. We said कि look, why the conventional systems and proprietary databases in the IT side are more or less eliminated. अब अगर आप देखें तो कोई डेटाबेस नहीं खरीदता, बल्कि वो अब आप जब से SAP लेते हैं तो you don't even know. Yeah. What database are they using? Oracle? Are they using this? अब ये बात नहीं होती. तो taking a cue from that, we said कि ये industry में भी ये revolution आएगा. So we started working with Microsoft and we started doing POCs कि इसको eliminate करके can we only do it in the cloud. So the POCs took about a year and a half, and then And at this point in time, you weren't generating insights on top of it. You were just saying, listen, just start moving the data on the cloud. no. And insights, yes, we were doing dashboards and all that. Our goal was, so the disruption that we want to create in that eventually is, जो हमारा कॉम्पिटिशन कहते हैं कि नहीं, आपके पास ये सारे सॉफ्टवेयर भी होने चाहिए और फिर आप क्लाउड पे ज़रा डेटा हम ये कह रहे थे कि नहीं, just go all cloud. Just do full Monty. Forget everything. कि ये सब कुछ क्लाउड पे अब वो कैपेबिलिटीज है थ्रू IoT टेक्नोलॉजी. एंड व्हाई इज इट पॉसिबल? ड्यू टू IoT टेक्नोलॉजी. पहले नहीं हो सकता था ये. Right. पहले आपको वही सॉफ्टवेयर होस्ट करने पड़ते थे और ये काम क्लाउड पे करना पड़ता. बट वो आपको द थिंग दैट आप जब तक वो प्रोप्राइटरी डेटाबेसेस नहीं लेते थे तब तक आप क्लाउड. सो दिस न्यू कॉन्सेप्ट था तो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट, लेकिन इस पे तो 1-2 साल तो हमने इस पे काम किया कि ये हो भी सकता है कि नहीं. Right. Then we said ये हो तो सकता है, but it again is a big problem because people need cloud engineering knowledge. And that's a different domain altogether. That's a different domain altogether. So Avanceon can do it, we can do it, but if we have to scale it, we have to make a product which makes it easier. So then in the next 3 years, we started making a product. So now to collect data and take it to the cloud and make it
complete in big data format, a person with 3 hours training on our software can do it in 2 hours. Interesting. So that germinated. So हमने एक product बनाया, Omni Connect. So Omni Connect data enable कर देता है, which we call OT data. IT is IT data, which is transactional data, and OT data is streaming data. Right. So an example would be कि अगर temperature का data आ रहा है, तो that is coming every 2 seconds. We are logging it. So it's humongous. So 1,000 data points है, तो imagine कि इसको आप multiply, you are also an engineer, I think. Yes. तो करेंगे तो वो immediately big data बन जाता है, even 100. So we use IoT to do that, and then we उसके अंदर हमारे पास पूरा इंटरफेस है कि किस तरह उसको contextualize आपने करना है. You don't, it's a complete no code interface. So you say temperature, multiply, divide, आप So कर इसकी सकते जो हैं. business analytics हो रही है वो वो सारी सारी front ऊपर के ऊपर हो रही है. and then we connect it to any business analytic tool, which in our case is Power BI. So Right. so we have, जिसे कहते हैं ना एक love, democratized. So if we go, we say कि why are you doing it like that? Just do it through an open. So business को real time पे at any given time वो सारी reporting हो रही है rather than Without- कि एक बंदा बैठा है वो निकाल के यार report निकाल के दो पिछले हफ्ते की और वो सारा कुछ करो. But इसी के साथ if I were to understand you mentioned machine learning and AI. My understanding is there's a conventional standardized like insight that you understand कि यार ये data ऐसे ये insight तो generate करनी है. But with this amount of data now is a lot of fun part as well, where you can potentially look at कि यार ठीक है अगर मैंने a plus b is equals to c कर लिया लेकिन मैं 4 चीज़ें और मिला के मैं क्या XYZ कोई insight generate कर सकता हूँ. Absolutely. Are you doing that as well? So ये जो empiric AI थी, they had done same kind of experimentation on the ML and AI level. Right. The only thing that they had done was that they had used conventional databases to do that. And they were housing the data in GE platform and then doing AI and ML stuff. So our idea was that now that we have addressed the data part, that we don't need that. Right. So if we cut that off and make a bridge and learn from that, modify those, what they have developed in a way that they are full cloud native and work with our data sets, so that would be a compelling, that's what you're saying. So फिर हमने जब ये acquisition की, तो the last 8-9 months have been spent in doing that. So now we are coming out, so एक product था Omni Connect, which we now are making it international and will be selling through channels that anybody can use that tool to do, like what Avanceon is doing. Anybody else can use the tool, and there is a whole method to that how the channel would work. And uske upar we are making these tools of machine learning. They are asset based. So we've picked up 20 say assets of the industry, say a pump, which cuts across every industry. So those asset tools have been made, and they would be working. So people would have data. Once they have 6 to 9 months of data, they can just select that tool and start having that machine learning algorithm also running. Interesting. If I were to ask you, because you've gone through this cycle of octopus, right? Would you say that the value, or rather, what has more value, the AI ML component or the data component? Again, I would say the... I mean, एक ज़माने में वो आया था कि यार data is the new gold, new oil, right? Again, अब आजकल AI ML के पीछे असल सब में चल रहा बात यह है कि in my opinion, देखिए जो हमारे बिजनेस की मॉडलिंग है ये AI मशीन लर्निंग की, वो तो अगर आपके पास 6 महीने का डेटा ना हो, इट कांट वर्क. That's the issue in our business. 6 महीने का मिनिमम चाहिए, because machines का and then a big job is to cleaning the data. देखिए ट्रांजैक्शनल डेटा में आप फिजिकली कितना डेटा की गलतियां कर देंगे, और गलती भी है वो पकड़ी जाती है. वो इन आवर बिजनेस वी आर स्ट्रीमिंग डेटा ऑन अ रियल टाइम बेसिस. वो अगर कोई सेंसर खराब है तो वो खराब ही डेटा होगा, ठीक है. तो मशीन लर्निंग कैन नॉट, सो these are the inherent issues in our business which had to be automated. So
So in my opinion, whether it is a viable business option that I'm saying or not, but in my opinion, the critical component is good data in big data format of OT. That is the first thing. Without that, nothing. So we've written a lot of tools. So वो जो मैं no code की बात, तो उसमें बहुत ज़्यादा हमारी टीम ने इतनी effort करी. तो we build a great data lake of OT data which can connect through any tool. Tools तो हम अलग बना रहे हैं मुझे, but it can connect. But having said that, ये तो मेरा view है ना. The selling pitch nowadays is always MLN AI. है. So वो No, that's what अच्छा I'm saying. बात बड़ी interesting है कि वो Because business कहेगा, doesn't अच्छा डेटा, understand लेकिन हाँ. मुझे अब आप उसे कहेंगे कि यार but you don't even have data in the right format. Yeah. So वो कहेंगे अच्छा step तो वो but I tell you what happens is जब वो insights और actionable information ही देखना शुरू कर देते हैं. देखिए एक मशीन की एफिशिएंसी, एक प्रोसेस एफिशिएंसी है, वही अगर आप रियल टाइम मॉनिटर कर रहे हैं तो और प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो वो बहुत बड़ी. उसके बाद ये सब कुछ तो बट आर वैल्यू, इसीलिए हमने उसमें मशीन लर्निंग के टूल्स बनाए एंड दे आर रनिंग ऑन ओपन टूल्स. सो वी जस्ट यूज पाइथन टू डू दैट. Makes sense. How's the feedback? आपने कहा हम इसको इंटरनेशनल लेके जा रहे हैं. You probably have spoken to partners here out here in the Middle East. What's देखिए the अभी feedback? तो फीडबैक बहुत ही अच्छी है. I don't want to jump the gun. Right. But देखें इसमें एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वी हैड द पाकिस्तानी मार्केट. So you had a good base. If we didn't have that, this business plan would have sunk already $30 million. I'm just being honest, and then we might have been out of business. We have some exceptional clients in Pakistan. So there are clients in Pakistan. Sorry, मैं आपकी बात काट रहा हूँ. There are clients in Pakistan who are participants of Octopus, generating that data, doing Of AI course, on top of and that. they are using those dashboards from the cloud. Fascinating. Tapal is one of them. Interesting. The whole product So, I mean, is... they're progressive enough to be, because this is gold standard right now. This is something that's happening all over the world, right? मैं So- आपको बताऊं, कुछ कस्टमर्स ने पाकिस्तान की जो किया हुआ है. I was on a trip just to understand, and I met a lot of channel partners अभी यूरोप में and the objective of the trip was not to sell right away कि I walk out with a sale. It was just to take very candid feedback. And I know a few companies through our business in Avanceon, so I had taken a lot of appointments. When I showed some of our work in Pakistan, ये चैलेंज नहीं था कि ये बड़ा कमाल है. चैलेंज ये था कि ये वाकई है कि you are, I'm not joking. And then I could see doubts in their eyes and they said, really? Although they know me and all that, Yeah. but I said yes. So one or two of our customers allowed, so I said, it's running. So we think we have an edge over others in addressing this problem that I had highlighted earlier, कि हम वो industry की problem को address कर रहे हैं. There are others who would be on the same bandwagon. And I think our challenge right now is to scale it up and have more and more installed base outside Pakistan. Makes sense. Connected to this, what's the aspect of data security in all of this? And this question is, इसमें दो tiers हैं. पहला ये है कि data security, because obviously it's proprietary data of the customers, तो उनका data, चाहे वो basic sensor का temperature ही हो, data is data, right? So how have you approached data security? And the second question is that इस model में भी confusion है इस time के ऊपर, where is the data going into a central repository being trained en masse across the industry, and then that trained algorithm is being sold to anyone else? Or are you saying कि listen, आपका data, आपकी hosting, आपका algorithm आप पे trained और वो आप पे ही use हो रहा है, and we can't cross sell it to someone else, not the data but the trained algorithm, for example. And then third question इसके साथ आता है कि जो data itself है वो भी एक commodity बन जाती है in today's day and age, right? And so how do you see that? Will these companies potentially sell it to an intermediary and they can sell it to someone else?
Or would they be not interested, and then potentially a third party player can come and take that data and be able to sell that as well? चलो इसका जो जवाब है ना, मैं तीनों का दूंगा और बड़ा इंटरेस्टिंग है. मैं इस क्लिप को फिर काट के ना अपनी मार्केटिंग और सेल्स की पिच में डाल दूंगा, बिकॉज दिस इज अ वेरी देखें. सो वी पहला सवाल कि जो डेटा सिक्योरिटी जनरली, सो आई एम नॉट a cloud expert, but I learned on the way, and I was working in terms of blocks, that what the public wants, how would we address this issue. So security was a very big issue. So we took the route of making our product cloud native. Now let me explain what cloud native is. Whatever we've developed, which is a very extensive code, and it is it's a brilliant thing that our team has done over the last 3-4 years, is not hosted on any machine. Okay. It runs on Microsoft services. So जिस तरह आप कोई भी Microsoft का प्रोडक्ट रन करते हैं, वो उनकी एप्लीकेशन सर्विसेज पर रन करता है. उसी तरह हमने, अगर हम उनका डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं तो एज अ सर्विस यूज़ कर रहे हैं. हमने जो ऐप बनाई है उनकी ऐप सर्विसेज पे हमने होस्ट कर दी है. सो वी आर नेटिव टू माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी. अगर हम अपना सर्वर और अपना सब कुछ होस्ट करते हैं, विच इज ऑल्सो एन ऑप्शन. सो यू कैन आइदर गो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस और यू गो फॉर माइक्रोसॉफ्ट सर्विस एज अ सर्विस. सो वी ऑप्टेड. अच्छा, ये जो काम होता है जब नेटिव बनाते हैं तो ज़्यादा मुश्किल होता है. इसलिए मुश्किल होता है कि आप 16 सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं जो डिफरेंट है, और उसके सारे आप उसको डेवलप इस तरह कर रहे हैं. देन to port it to any other is also difficult, because आपने तो नेटिव माइक्रोसॉफ्ट पे डेवलप कर लिया. बट बहुत सोच के हमने कहा कि अगर हम अपना बनाएंगे तो ये इतने सवाल आएंगे, क्योंकि अगर हम अपना सर्वर होस्ट करते हैं तो पूरी सिक्योरिटी वगैरह. सो नाउ दैट when we go to customers all over the world and say it's native. So even if you have a Microsoft account, if you are a corporate Microsoft customer, you can use, we will link your directory, Active Directory. मैं बहुत टेक्निकल हो रहा हूँ, लेकिन ये मैं आपको with our solution. So you're basically saying कि जो आपकी डेटाबेस की सिक्योरिटी है वो माइक्रोसॉफ्ट के जिम्मे है, because they're the ones hosting it. कि उसको इसको थोड़ा सा What about the encryption of the data? वो तो सारी वही तो जब हम उनकी सर्विसेज करते हैं, वी आर यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट. हमने पहले बनाई थी अपनी, वी फ्रॉम इवन जो एज, जो हम फैक्ट्री से डेटा ऊपर जाता है, दैट्स एजर. वी यूज नेटिव एजर टू इनक्रिप्ट, goes into IoT hub, that decrypts and go directly to the data lake. So we have used, so everybody feels very confident in the world. So ये अमूमन पूछते हैं कि is it truly native? तो यार इसका, so then we have to show them architecture, which we should not, because it is our whole internal thing. But at a higher level we show them. There's no leakages. There's no कहीं ना कहीं यहाँ से switch होके. देखें, अगर आप अपना पासवर्ड किसी को दे देंगे तो वो तो लीकेज हो जाएगी ना. लेकिन वो उसके अंदर उस पासवर्ड के थ्रू जाके, if he has to go in and hack and change the code, then he has to go through Microsoft security. ठीक है ना वो? ठीक है. नंबर 1. अब रह गया इंडिविजुअल का डेटा. सो आवर सॉफ्टवेयर इज मल्टी टेनेंटेड. दैट्स ऑल्सो फीचर विच ऑल दीज सर्विसेज प्रोवाइड. जब आप अपना, जैसे ही हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर अपना बनाते हैं लॉगिन कोड और ये, तो वो एक पूरी टनल आइसोलेटेड थ्रू माइक्रोसॉफ्ट बनती है, एंड विद इन डेटा लेक यू आर अ टेनेंट विच इज totally isolated with anybody else. And that was also an extra cost, but we did it. So that basically means कि मतलब what does that mean? कि basically आपकी जो आपको rights मिले हैं, आप सिर्फ उसको देख रहे हैं, उसी को देख रहे हैं, आप जा ही नहीं सकते ना. वो तो टनल, क्योंकि आपको है ही मल्टी टेनेंटेड अप्रोच से हमने डिज़ाइन किया हुआ है. एंड बिकॉज इट्स क्लाउड नेटिव, सो इट्स लाइक योर emails nobody else can see. Right. Unless he has a password of your. तो वो यूजर एक्सेस आपने बेसिकली डिफाइन किया हुआ है. नहीं, यूजर, और उसके अंदर वो भी एक किस्म की ब्रिक वॉल है ना, क्योंकि वो डिजाइन ही ऐसा है. ठीक है. कि व्हेन यू डू मल्टी टेनेंटेड अप्रोच, तो वो डेटा बिल्कुल एक किस्म का कोर उस वॉल के अंदर और उस टनल के अंदर ही रहता है. दैट्स आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट सिंपली, बट मल्टी टेनेंटेड इज कंसिडर्ड के हो गया, ये भी गोल्ड स्टैंडर्ड. थर्ड, आपने कहा कि जो
द बिजनेस मॉडल ऑफ डेटा। बिजनेस के जी डेटा। अब उसके अंदर कुछ जो मॉडल्स हमारे हैं वो तो हम ओनर करते हैं, हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, हम कहते हैं कि इसकी एप्लीकेशन है, आप इसको यूज कर लें, आर मॉडल इज गेटिंग परफेक्टेड एंड दे आर यूजिंग इट ऑन आर सब्सक्रिप्शन. बट वी ऑल्सो अलाउ द इंडिविजुअल टू मेक देयर ओन मॉडल्स. Right. They can use Microsoft's tool and any Python tool through our API, do it, host it, and do that. That when they do, they will save those formulas and all that in their tenant. It's not available. We give this option कि क्या आप इसको पब्लिक के लिए अवेलेबल करना चाहते हैं हाँ. या नहीं करना चाहते. ये उनकी चॉइस है. क्योंकि I mean the way that I see it, 10 years down the line, we're looking at a चौथा marketplace पॉइंट था of आपका. नाउ इज द मार्केट प्लेस ऑफ डेटा. right. देखिए जितना मैंने उसे स्टडी किया है, यू कैन नॉट सेल डेटा ऑफ एनी, वी कांट मेक अ बिजनेस आउट ऑफ इट कि देखें. बट यस, यू कैन बिल्ड अ सर्विस इन विच यू कैन से, एंड वी विल डू इट आफ्टर, कि सपोज दे आर 10 टी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, they're using the same kind of, so without giving names, so we can make do you want to benchmark, which is in HR, you benchmark your salaries against others and they don't tell you the name, they say you are in the top 95%. So एक process है जिसकी efficiency, so you can talk to your customers and say, look guys, 20 people have agreed to, without taking names, to benchmark their data. Do you want to be part of that group, which helps the industry? Yeah. That's all. And then publish the data. तो वो ज़रूर इरादा है कि eventually, क्योंकि देखें जब इंडस्ट्री उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेगी, उसमें efficiencies लाएगी, तो that data has to spread. Even if we have to convince people, we'll have to convince them कि देखें इसमें कोई data security breach नहीं हो रही. You will get to know about the others without any names, and that is what we have in mind. A roadmap eventually. मुझे ये बताएं कि you guys are very active in the Middle East. When you talk to services companies in Pakistan, तो वो उनका ये होता है कि यार पहले अमेरिका, फिर अगर अमेरिका में हम सैचुरेट हो गए तो हम थोड़ा सा यूरोप को देख लेंगे, फिर हम मिडल ईस्ट में आएंगे. मिडल ईस्ट में मार्जिन्स कम हैं, पेमेंट साइकिल्स जो हैं उनके मसले हैं, प्रोफेशनलिज्म के मसले हैं. व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन US वर्सेस यूरोप वर्सेस मिडल ईस्ट मार्केट, एंड हाउ हैज़ योर एक्सपीरियंस बीन इन द मिडल ईस्ट मार्केट? देखिए क्या होता है, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस. हमने यूएस में स्टार्ट किया था Avanceon, बट वी फील फॉर द Avanceon वर्क मिडल ईस्ट ऑफर्ड मच मोर अट्रैक्टिव ऑप्शंस एट दैट टाइम, बिकॉज यहाँ इकॉनमी ग्रो हो रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो हो रहा था, कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ हो रहा था. सो दैट वाज अ गुड स्ट्रेटजी दैट वी फोकस्ड एंड पुल्ड बैक फ्रॉम. ऑन द ऑक्टोपस थिंग, we're not even thinking Middle East right now. So anything that we raise right now would only be for the US and very selected Western, because that is totally a different business. And we are just looking at US. So the US, do you think is a much better product-based For business? Octopus, yes. For So product. Why do you so एक तो लॉजिकल एवोल्यूशन है ना कि Avanceon में ये हो रहा था तो हमने सोचा यार वर्टिकली इंटीग्रेट करें और इस कंपोनेंट को ले लें. पाकिस्तान में आजकल बड़ी आवाज़ आ रही है, वो लोग कह रहे हैं कि यार द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इज़ प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेसेस. सर्विसेज को आप आर्बिट्राज पे कितना ही बेच लेंगे, कब तक बेच लेंगे. पहला तो मुझे बताइएगा कि व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड गोइंग टुवर्ड्स अ प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस, एंड दूसरा, डू यू थिंक इज इट रियलिस्टिक टू स्टार्ट ड्रीमिंग अबाउट क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स आउट ऑफ पाकिस्तान एंड देन सेलिंग देम इनटू द US मार्केट? ये देखिए ड्रीम तो ये बिल्कुल नहीं है. ये तो जो मैं आमिर की आपको बता रहा हूँ, I mean, you look at what I2C or he's done, and out of Bay Area, competing with the best of the best, and creating a full service solution for top financial institutions. Yeah. And competing with even the financial institutions, IT companies, कि देखें आप इतना अच्छा नहीं करते, हम करके देते हैं आपको. It's a full hosted application, and then without an application, that service cannot exist. So, देखें अगर compelling, but you have to persevere, and whatever you're thinking of a product should actually be a product. There are no half measures there. So, I mean, I'll give you an example of our, so our say business plan of Octopus is to sell through channels.
सो ओवर आर्चिंग स्पेक उसकी यह है कि 4 घंटे की ट्रेनिंग के बाद somebody should be able to do a project. If you can't do it, it's not a product. So I think first point हमारी तो thought process ये था कि yes, our idea is very good. It is a top quality idea that embrace the big data. I mean, in an overall technical concept, everybody agrees with it. And then you talk to thought leaders of the best in the world, they'll say, हाँ, eventually तो यही है. But how to do it? So we harnessed that. We learned that technology. We implemented projects. But then we realized we can be, even if we are very successful in taking our customers to the cloud. What am I saying? More business, more people. So my business of services cannot be as scalable as product. And then all the issues about how to retain, cloud engineering, learning new technologies. So you cannot have 5,000 people learning those technologies and implementing that. तो इसलिए हमने तो, और सारी वो रीज़न जो कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए जाता है, तो हमने तो इसलिए किया कि वी वांट टू बी स्केलेबल. Octopus should focus on a world-class tool that enables people to take OT data to big data format in the cloud, and that's our mission, and we'll do that. तो इसलिए हमने ये किया. मेक सेंस. थोड़ा सा मैं पाकिस्तान की तरफ आऊँ. रिसेंटली इकोनॉमिक्स थोड़ी सी अप एंड डाउन हुई है. पहला तो ये कि आर यू वरिड बोथ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टर्बुलेंस दैट पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू एंड ऑल्सो टैक्सेशन आई है. टर्बुलेंट तो पाकिस्तान हमेशा से है, तो वो तो जिसे कहते हैं ना आदमी कुंदन हो जाता है. तो वो तो कोई देखें, बट देयर इज पोटेंशियल आल्सो. सो यू नो इट गोज, जरा सा ठीक होता है तो पाकिस्तान स्टार्ट्स गिविंग सच गुड रिटर्न्स कि आप हैरान हो जाते हैं कि ये क्या है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल देयर इनहेरेंट समहाउ. ये आप जो भी कह लें कि वो पोटेंशियल तो है, लेकिन अगेन लाइक आई सेड कि वो जो टर्बुलेंस है, डज दैट वरी यू? इट डज ऑल द टाइम. देखिए बिजनेस में तो जिस तरह जब ये डॉलर्स वी वुड हैव क्लोज डाउन अगर हमारे पास ये बाहर की ऑर्गेनाइजेशन ना होती, या हम बाहर जो हम डॉलर्स अर्न कर रहे थे वो ना करते, तो वी वुड हैव क्लोज डाउन. जब इन्होंने एलसीज बंद की हैं, पाकिस्तान का बिजनेस बंद होता तो उसका इफेक्ट होता, सारी चीज़ें होती ना. तो वी फंडेड दैट बिजनेस फ्रॉम आर फॉरेन बिजनेस. इवन द इम्पोर्ट्स वी फंडेड थ्रू आर फॉरेन रिजर्व्स. देखिए ये टर्बुलेंस तो मैटर करती है. आई थिंक उसको सिर्फ कहते रहना टर्बुलेंस है, तो दैट कोई फ़ायदा नहीं है उसका. मेरा ओपिनियन ये है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये हर वक्त हम, अब एक प्रॉब्लम है वो तो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, उसका क्या करें. मेरे हाथ में तो नहीं है ना, आपके हाथ में है. सो वी कैन ओनली टॉक, वी कैन प्रॉब्ली गिव आवर कॉमेंट्स, बट बिजनेसेस को तो अपना काम करते रहना चाहिए. वर्क अराउंड निकालना है और काम करना है. What's your thought on the recent salary? देखिए वो तो आई एम वेरी पैशनेट, बहुत गलत हुआ. राइट. देखिए वो लॉजिकल नहीं है. अभी मैंने कल ही अपने HR को कहा कि पूरा एनालिसिस बना के दें कि वो कितना गया किसको किस ग्रेड पे. बट how does services businesses it is retrogressive what they've done. मेरे ओपिनियन में इट्स retrogressive. What do you mean by that? देखिए पहले तो ये है कि वो ही डॉक्यूमेंटेड हैं बिजनेसेस जो सैलरी को डॉक्यूमेंट करते हैं. ठीक है. सो देयर ओनली दोज बिजनेस जिनकी सैलरी भी, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट, बट देखिए जितने भी और हमारे बिजनेस हैं ना, यू एंड आई नो दैट उनकी सैलरी भी डॉक्यूमेंटेड नहीं. तो आपने ये फैसला किया कि जो अच्छा बच्चा है उसको, अच्छा जो बिजनेसेस भी अच्छे हैं, जो कि शो करते हैं अपनी सैलरी जेन्युइन अपने लोगों की, और वो जो लोग हैं वो भी टैक्स देते हैं. अब आप देखेंगे तीनों चीज़ें साथ हों और आप ये फैसला करें कि उन्हीं को टैक्स कर देंगे. अच्छा वो जो बिजनेस डॉक्यूमेंटेड है वो अपना बिजनेस वाला भी टैक्स दे रहा होगा. तो वो बिजनेस का भी टैक्स दे रहा है, और उसके बिजनेस में जो काम कर रहे हैं वो भी ज़्यादा टैक्स देंगे. तो ये कोई एक एनामली है. इट्स नॉट इवन जस्ट ऑन द इनकम, राइट? बिकॉज जब आप सैलरीज के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं तो आप अपनी प्रोडक्ट को टैक्स कर रहे हैं जो कि बाहर आपने बेचनी है. सो यू बेसिकली मेकिंग इट अनकंपेटिटिव. और उसके अंदर जो दूसरी एनामली है, फिर आप कहते हैं कि कोई इंडिविजुअल अगर सर्विसेज बाहर बेचता है, मतलब एज अ जो आजकल गिग इकॉनमी की बात हो रही है,
तो if an individual gets those services, As a say even freelancer. $1,000, that's not taxable. So you are pushing. It's like giving incentives to export cotton, but not giving incentives for high-end textile products. अब yes, people say कि भाई उनको क्यों टैक्स लगाओ भाई उनको. So either give incentive to the companies whose employees pay that kind of, because आप क्या कर रहे हैं फ्लैट करें ना, या तो देखिए आपने उसको भी टैक्स कर करना दें. है तो सबको टैक्स आप करें. ये कह रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट है पाकिस्तान में जो प्रोडक्ट बनाता है या जो एक सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहा है. से ओके एक कंपनी है वो सारे की सारी जो अपनी सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं उसके एम्प्लॉयज़ पे 35% टैक्स लग गया. मतलब 30 आप लगा लें 25 से 40 भी, मतलब जिनकी 6 लाख से ऊपर है वो उस पर बहुत, मैं वो देख रहा था. चले एनीवे 25%, 25 से 40 पे एग्री कर लेते हैं टैक्स. फिर आप ये कह रहे हैं कि एक फॉरेन कंपनी अगर उन्हीं लोगों को यूज करती है तो उस पर टैक्स नहीं है. सो यू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बिजनेस of local companies by 25 to 40%. So essentially, a Pakistani company should go out, build an office there, and use. And hire individuals, right? So मेरा वही पॉइंट है कि बेसिकली व्हाट यू आर इंसेंटिवाइजिंग है कि अब आप एक दो कंपनीज बनाएंगे, एक आपकी कोवर्किंग कंपनी होगी और एक आपकी जो बाहर कंपनी. टेक्निकली उसमें लीगैलिटी का इशू है. हम तो कर सकते हैं वो. We have operations outside, but we don't do it because देखें वो एक नोशन होती है कि you are circumventing something. ये क्यों करे कोई कि आप बाहर से एम्प्लॉय कर लें तो उसका फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट पे कर लें, उसको जॉब पे ना. तो बट एट अ हायर लेवल दिस इज व्हाट यू डूइंग. यू आर सेइंग दैट लोकल कंपनीज, अगर आप सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इन टर्म्स ऑफ सैलरी इज 25 to 40% higher than international company. If that is fair, That doesn't make any sense. I mean, top-down policy level, you need dollars right now. You're talking about $10 billion IT industry, and you're वो basically short term है ना कि जी that's a shot in the arm that individuals will do and the gig economy will grow by say $100 million. So that's what you should be looking at. मेक सेंस. मुझे ये बताएं कि रिसेंट जो बहुत शोर मच रहा है ब्रेन ड्रेन के ऊपर, टैलेंट छोड़ के जा रहा है, टैलेंट चर्न हो रहा है बहुत ज़्यादा. हैव यू एक्सपीरियंस दैट? यू नो मे बी टैलेंट लास्ट ईयर हुआ था जब बहुत डिवैल्यूएशन हुई है और प्रॉब्लम्स आई थी और so of course that was an issue, and then we arrested the problem and we did a lot of things, and now it's okay. But देखिए ब्रेन ड्रेन उसी तरह है ना. आप ब्रेन ड्रेन तो वो भी हो गया कि एक बंदा लोकल कंपनी छोड़ के बाहर कंपनी में जॉब करे तो ब्रेन ड्रेन ही हो गया ना. हाँ. एक दिन वो छोड़ के बाहर चला जाएगा. सो यस, ब्रेन ड्रेन तो इतना है कि जिसकी कोई हद नहीं इस वक्त. एंड देन अगर इसी के साथ मैं लिंक करूँ टैलेंट की पाकिस्तान में, डू यू थिंक देयर इज एम्पल अमाउंट ऑफ टैलेंट? जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपको उसके हिसाब से टैलेंट मिल रहा है रेगुलरली, या आपको लग रहा है कि यार टैलेंट की क्वालिटी या क्वांटिटी कहीं ना कहीं चोक होती है? And if there was more talent available, it would have been made things easier for you. देखिए वो तो अगर मोर टैलेंट इज कमिंग आउट वो तो आने जो देखिए जो ग्रोथ के प्लान्स हैं एंड व्हाट आवर कंट्री और आवर गवर्नमेंट्स वांट टू डू इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके लिए तो टैलेंट इनफ नहीं है. सो देयर हैज़ टू बी सम वेज टू आइदर जल्द किसी की स्किल इन्हांसमेंट, कहाँ क्या करना है, वो एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना चाहिए. मे बी वो कर रहे हैं, आई कांट कॉमेंट ऑन दैट. आजकल बात तो बहुत हो रही है तो मे बी हो जाएगा. अभी आई थिंक द मोस्ट क्रिटिकल थिंग इज ब्रेन ड्रेन एंड दिस एनोमली दैट वीव टॉक्ड अबाउट. वी फाइंड आवर पीपल. आई मीन आई थिंक we get our talent. I'm very proud of the fact that our talent is quite world class. What we've managed to hire and retain. But the other challenges कि जो policies के अंदर वो हैं और टैक्स वगैरह, आई थिंक इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है. और फ़ौरन ना करें तो थोड़ी देर में कर लें.
मेक सेंस। देखिए अगर आपने टैक्स लगाना है तो कंपनी को टैक्स लगा दें यार। आप कंपनी का कॉस्ट, ये कहना कि जी टेक कंपनी को टैक्स ही नहीं होना चाहिए, तो वो कोई लॉजिकल नहीं बनता ना। हाँ आप फिर इंडिविजुअल को कह रहे हैं एज अ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय जब वो नहीं है टैक्स, और अगर आपने इनको, आप वही जो एक्सपोर्ट का आपका टैक्स है 2% 2.5% जो है वो लगा दें सॉफ्टवेयर कंपनीज को भी, व्हाट्स द प्रॉब्लम। और वो बेसिकली इनकम पे होगा, माय अंडरस्टैंडिंग, या रेवेन्यू पे होगा? नहीं देखिए दोनों चीज़ें होती है ना, इनकम पे होता है, जो ये बाकी जितनी एक्सपोर्ट हैं उन पे एक फ्लैट टैक्स है ना आई बिलीव। फ्लैट टैक्स है इस बार इन्होंने, हुआ ये इस बार कि टेक्सटाइल का इन्होंने ये किया है कि फ्रॉम फ्लैट टैक्स, जो लास्ट मुझे पता है, इन्होंने इसको कन्वर्ट किया टू इनकम टैक्स। तो वो ये कह रहे थे कि ओरिजिनली ये हो रहा था कि यार एक कंपनी है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया, अभी उसको पहले 3 साल हैं, वो तो प्रॉफिटेबिलिटी में ही नहीं है, वो फ्लैट टैक्स रेवेन्यू पे 2% दे रही है। वेर एज जो बहुत बड़ी वेल एस्टैब्लिश कंपनी है, उनका $100 मिलियन का लेट्स से इनकम है, वो उसके ऊपर अपना वो शिप तो है। देखें, तो इन्होंने स्विच करके 18% इनकम टैक्स कर दिया अब। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि उनको 18 किया ना इनकम टैक्स, तो अगर उनको, ऑल आई एम सेइंग इज कि अगर उनको फ्लैट टैक्स दिया था फॉर दैट टाइम, मे बी माई कॉलीग्स ऑफ द इंडस्ट्री वुड नॉट लाइक इट, बट द फैक्ट इज लगा दें 2.5%। देखें अगर आपने 1% रखा हुआ है, उसको 2% कर दें रेवेन्यू के ऊपर। हाँ, लेकिन आप बेसिकली रॉ मटेरियल पे ना लगाएं, बिकॉज़ दैट जस्ट डिस्ट्रॉयज द बिजनेस मॉडल। द इकोसिस्टम खराब कर रहे हैं ना। और वही 2% उस पर भी लगा दें जो कि वो है जो गिग एम्प्लॉय है, उस पर बल्कि थोड़ा सा देखें, 2-5% से कोई चेंज नहीं होता। Businesses have to rise above that, Right. and they have to say that yes, ये फेयर है, हम देंगे। लेकिन जो आप रॉ मटेरियल उधर और कहीं से छुपा के, वो लॉजिकल नहीं बनता। मेक सेंस। आपके ख्याल में हम पाकिस्तान में 10,000, 50,000, 1 लाख एम्प्लॉयज़ वाली आईटी कंपनीज क्यों नहीं बना पाए? सिंपल, अगर एक बिग पिक्चर आपसे पूछूं, इंडिया में हमने देखी, बाकी दुनिया में हमने देखिए देखी। एक तो आई थिंक दिस इज एक तो वी आई थिंक मिस्ड दी एरा होता है ना, स्टील एरा आता है फलाना, तो वो एरा आया था जब ये पीक पे जा रहा था, और ये बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग ये जब सारी हुई, सो एक पुश बनी थी कि ये आउटसोर्स करना है। उस वक्त प्रॉब्ली इंडिया वाज वेरी वेल पोजिशन टू डू दैट, एंड वी आर नॉट वर्किंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। तो एक तो ये है कि हमने वो जो हमेशा एक साइकिल होता है वो मिस किया। अब नया साइकिल आ रहा है, प्रोडक्ट का साइकिल आ रहा है, लोग मतलब देखिए ना, वी शुड नॉट मिस दिस साइकिल एंड वी शुड बी मोर वरिड अबाउट द न्यू साइकिल दिस। सो अब अगर हमने वो सर्विस कंपनीज नहीं बनाई, तो हमें प्रोडक्ट और जो आजकल टैलेंट है जिस तरह की बात, उनको नर्चर करना है कि दूसरे साइकिल में हम आए, और बन सकती हैं, आई एम श्योर। आपने नए साइकिल की बात की, I'm going to ask you some questions on the future, brainstorming hat on. अगर जियोपॉलिटिकली मैं देखूं तो मुझे नज़र आ रहा है कि ट्रम्प इज़ कमिंग बैक पोटेंशियली, एंड ट्रम्प इज़ ऑल अबाउट मेड इन अमेरिका। हमें नज़र आ रहा है कि यार यूरोप की एजिंग डेमोग्राफिक है, यूएस और एक राइट विंग का राइज भी हो रहा है, सो एंटी इमिग्रेंट सिचुएशन चल रही है, चाइना से भी एक एक कॉन्फ्लिक्ट सा चल रहा है। सो पोटेंशियली द वे दैट आई सी इट इज़ दैट वी माइट जस्ट सी अ लॉट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गोइंग बैक टू द यूएस, बट ऑन द बैक ऑफ, क्योंकि वैसे अगर आप कन्वेंशनली सोचें तो आप कहते हैं कि यार आपकी द अकाउंटिंग डजंट मेक एनी सेंस, $60,000-70,000 का बंदा। देन व्हेन यू लुक एट के एआई तो चल ही रहा है, उसके अंदर रोबोटिक्स में बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, पर्टिकुलरली फैक्ट्री रोबोटिक्स के अंदर, जिसमें आई डोंट नो इफ यू सॉ दी हवावी की जो गाड़ी की वीडियो उन्होंने निकाली है, एंड टू एंड, नॉट अ सिंगल ह्यूमन टच, दैट वाज फिनोमिनल। And so that basically what that shows you is कि you take the human capital cost out and you automate the entire process. तो फिर चाइना में चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, अमेरिका में हो रही है, इट्स द सेम थिंग, राइट? द कॉस्ट गोज डाउन, एंड सो politically you see that push in the demographic. 20 years later, the way that I see the world is कि जो वेस्ट है, वेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग, वो चीज़ें ड्रिवन बाय ऑटोमेशन ऑलरेडी हो रही होंगी, और उसके अंदर जो टैलेंट है वो बेसिकली पाकिस्तान, इंडिया, बाहर कंट्री से बाहर बैठ के वो टैलेंट जो है ना, वो लेट्स से मैनेज सर्विसेज का टैलेंट है, या वो आगे पीछे चीज़ों का टैलेंट है, जहाँ पे अभी 50 लोग हैं, वहाँ पे एक बंदा बैठा पूरी फैक्ट्री को मैनेज कर रहा है। दो सवाल आते हैं इसमें।
पहला तो ये कि when you guys are a very core component if you think about it कि यार जो that imagination, it's an imagination, right? कि एक दुनिया हो जिसके अंदर बस आपने रॉ मटेरियल फेंका और आगे मशीनों ने सारा कर करके प्रोडक्ट निकाल के साइड पे कर दी. उसके लिए आपको बहुत सारा डेटा चाहिए, उसके लिए आपको बहुत सारी टेक चाहिए, और एंड यू वांट टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग वर्क्स इन द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड वे एंड विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ फेलियर्स. सो ऑब्वियसली समवन लाइक यू प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ओवर देयर. दूसरा ये कि उसके अंदर देन द नेचर ऑफ आउटसोर्सिंग चेंजेस ऑल टुगेदर, राइट? एक तो आपने कहा कि जिस तरह जिसमें प्रोडक्ट्स देन प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल वेयर ऑल ऑफ दीज फैक्ट्रीज विल हैव लाइक अ रेंज ऑफ डिफरेंट एप्लेट्स और सर्विसेज दैट देव सॉर्ट ऑफ टेकन. एंड देन इन टर्म्स ऑफ इवन ह्यूमन रिसोर्स वो एक बड़ी डिफरेंट रिक्वायरमेंट आने वाली है कि जिसमें शायद जो एक्चुअल सॉफ्टवेयर की है वो बड़ी छोटी सी प्रोडक्ट की टीम्स हैं, और जो एक्चुअल वर्क है वो शायद बड़ा डिफरेंट नौयत के लोग कर रहे हों. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द पिक्चर दैट आई हैव पेंटेड? इट्स नॉट अ बैड वर्ड टू पेंट ऑनेस्टली. देखें, सारी जो ऑटोमेटेड चीज़ें आती हैं कि टोटली, देखिए मटेरियल, रॉ मटेरियल एंड ह्यूमन कॉस्ट इन प्रोडक्शन इज जस्ट वन कंपोनेंट. आप एलिमिनेट भी कर लेंगे सप्लाई चेन, ये बहुत सी चीज़ें हैं जो करनी है, और वो जब आप से अमेरिका की उस पर करेंगे तो मे बी इट्स वाइबल, मे बी इट्स नॉट वाइबल, बट द रियल thing to learn is कि when you go to that level of technology, the supply chain also changes. किसी ने वो प्रोग्रामिंग करनी है, किसी ने वो स्किल डेवलप करनी है, तो you still need people. Yes, there is an argument to be made कि unskilled बंदे की जिंदगी खराब हो जाएगी because they would have nowhere to go. What do they do? So maybe they'll have to go to the lowest food chain point, क्योंकि वो शायद automated now, supply chain का. But लेकिन to achieve what you're saying, there is so much engineering and so much services and so much product of a different level that has to go in data कि वो भी तो कोई करेगा ना. तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो, मेरा ज़ाती ख्याल कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एज अ स्किल will have a lot of more 100%. jobs. देखें, अगर आप ये कहते हैं, देखें पहले आप रिपोर्ट इधर से डेटा लेके और एक एक्सेल की जो रिपोर्ट बनाते हैं, द फर्स्ट थिंग वी गो, इवन इन ऑक्टोपस वी गो एंड से इज वील एलिमिनेट एक्सेल. अच्छा, एक्सेल को कंसिडर किया जाता है कि बहुत अच्छे, वील एलिमिनेट नो मैनुअल एंट्री. अब वो लोग घबराते हैं कि अच्छा फिर क्या होगा, तो जो मेरे 4 लोग ये सिर्फ रिपोर्ट्स बनाते हैं, तो वी से कि बिकॉज that data can be adulterated. We are not against them. We'll train them how to do it on this. Yeah. But our data is not adulterated. What you see is what you get. Right. अब तो ये तो होगा. आप की जो स्किल, अगर आप अब लॉयर्स की बात करते हैं, they say कि if you are doing simple contract law, you are out of business. Nobody will, that AI would do most of the work. आपने एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाना है, सिंपल लीगल डॉक्यूमेंट बनाना है, दैट दोज डेज आर गॉन. आपने थोड़ी रिसर्च करनी है कि मुझे सारा कुछ बताओ कि ये कि वो देखिए ना, एक लॉ में वो देख रहे होते हैं कि कौन कौन से साइटेशन है, ये है, दोज डेज आर गॉन. वो पैरालीगल वाला काम खत्म. तो बट व्हाई नॉट, दे शुड वर्क ऑन मोर क्रिएटिव, they're educated people on a higher level of skill. तो ये तो होगा. But it's not I mean, if I look at it, I get excited. I may not be alive to see all that, but I really want to be in that world, which has all that. Do you see a potential case to be made for universal basic income? A lot of people say कि यार so पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो कहा कि यार प्रोडक्टिविटी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, लोग जॉबलेस हो जाएंगे. अच्छा, वो हुआ ये कि प्रोडक्टिविटी तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, बट वी डिडंट गेट द डिविडेंड्स आउट ऑफ इट. आज अब एआई के टाइम पे फिर से ये बात हो रही है कि वी आर लुकिंग एट मैसिव प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस. सो नाउ देयर इज़ अ ग्रोइंग वॉइस इन द वेस्ट पर्टिकुलरली जो ये कह रहे हैं कि यार यू नो व्हाट, गिव एवरीबॉडी यूनिवर्सल बेसिक इनकम, डोंट इंक्रीज जॉब्स, लेट हुएवर वांट्स एडिशनल मनी वो जॉब ले ले, बट रादर देन यू नो कीपिंग दिस सॉर्ट ऑफ अ फ्री मार्केट, यू नो अपने खाने पीने के लिए भी जॉब्स तुमने लेनी है, दैट बेसिकली चिप्स अवे ऑफ. Whatever I've read about it, I've always been very intrigued about universal basic income. कई जगह उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं, कई जगह वो कहते हैं कि अच्छा, I don't know, because most of this
ये जो इंफॉर्मेशन होती है इज़ यूजली वेरी क्लाउडेड विद अ लेंस on how the journal is writing and how the because अगर कोई purely capitalistic है even like I am a old subscriber of Financial Times. Right. I sometimes think that their lens is pure capitalistic and what they write has no answers clearly कि they don't like the other option तो वो कोई ना कोई there केस is बना always a रहे bias, हाँ. हैं bias. तो देखें वो what I've read about it I'm a big fan. Right. But on the other side, I'm not an economist. I don't know How about it might pan out, How we pan don't out, know. but I think in one thing I am sure that in developed countries that should be the case because it doesn't make sense that what you see when you see some poverty in countries with $60,000 per capita income. Like, how do you have homeless people? What's going on here, right? There is something wrong. I mean, okay, Yeah. so there is an argument to be made कि जो वैसे ही होते हैं इनका होगा लेकिन जो भी है the society owes that. Yeah. कि रोटी कपड़ा मकान जो है वो basically. कुछ अब हाँ whether it is possible in our country I don't know why not. So basic income ना हो तो जो हम इतना झगड़ते हैं मिनिमम वेज पे मुझे अब ये बताएं कि क्यों नहीं हो सकती मिनिमम वेज बेहतर पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम है ये आई थिंक लास्ट टाइम सो आमिर ही स्टार्टेड एन इनिशिएटिव लास्ट टाइम वो पाकिस्तान में था कि यार हम मिनिमम वेज वॉलंटरीली बढ़ा देते हैं लेट्स गो सो वी ऑल ही स्टार्टेड इट वी जॉइंड हिम एंड देन वी ट्राई टू वू अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज कुछ आई कुछ नहीं आई बहुत थोड़े से लोग बट आई जेन्युइनली थिंक कि अगर आप टोटल देखें तो ये कैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन सोच सकती है कि ये मिनिमम वेज है मैंने इससे भी कम देना है और वो गुजारा मतलब हाउ डज दैट वर्क फॉर अ बिजनेस वो इवेंचुअली वो बंदा जाएगा वो जाके कहीं और से मांगेगा वो डबल जॉब्स करेगा वो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होगी जब तक आप उसकी बेसिक नीड्स तो पूरी कर देना अब यूनिवर्सल बेसिक इनकम इज many notches above the concept of minimum wage. Right. अब वो मे बी वहाँ तो पहले तो ये तो शुरू करें हमारे यहाँ. Makes sense. I have the last question. We're at the 1 hour 40-minute mark. काफ़ी लंबी भी हो गई है. मुझे ये बताएं कि do you read a lot? You mentioned Financial Times and I read a lot. Do you read books or articles or bit of both? I only read for मतलब newspapers, but otherwise I read a lot of fiction. If I were to ask you for 3 recommendations in terms of books, what would they be? देखिए मेरे वो Could be fiction as well. हाँ तो recency effect होता है मेरा. Right. So one book I can tell you which had a huge effect on me. And there is a Somerset Maugham book. उसकी वो autobiography. I'll tell you the name. Send me the by the way of human bondage. Right. That had a very big. I mean, while growing up, I was really affected by that. आज मैंने फिर एक बीच में एक किताब पढ़ी थी अभी पिछले दिनों को 2-3 साल पहले एंड विच आई थिंक इन मॉडर्न टाइम्स की बहुत एक राइटर है रोइंटन मिस्ट्री व्हाट वाज अगेन उसका नाम लेकिन जो थर्ड मैंने पढ़ी है वो उसकी सीरीज़ भी बनी है मुझे किसी ने बताया दैट बुक इज़ लेसन्स इन केमिस्ट्री राइट आई थिंक इट्स अ वेरी if you have to read a book right now, I highly recommend that. If you can send the links to these 3 books, I would love to put that in the description as well so that people can check it out as well. But I'm going to wrap this up. Thank you so much. The Rohinton Mystery book is Fine Balance. Zabardast. Bakhtiar Saab, thank you so much for giving us your time. I'm going to ask you one last question. How do you see Pakistan of 2050, 26 years from now? Yeah, I can't predict. But I can only say कि देखें हम हमेशा पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स की बात करते हैं बट वी डोंट रियलाइज कि बड़ी जल्दी उसकी प्रॉब्लम्स थी कोई इतनी मेजर प्रॉब्लम्स नहीं है व्हाट आई मीन जो डेट की भी हम बात करते हैं थोड़ी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड ज़रा सा ठीक हो जाए ना सो इट कैन बी अ टॉप प्लेस टू लिव और वो बड़ी सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं बाय द वे वो बाकी भी कंट्रीज की ये प्रॉब्लम्स रही हैं एट सम पॉइंट इन द लास्ट 10-15 इयर्स एब्सोल्युटली इट इज उससे बहुत बुरी रही हैं आई मीन ये तो कुछ भी नहीं है वी हैव अ जनरली एन इंटेलिजेंट पॉपुलेशन एंड इफ वी educate them
आई थिंक इंसेंटिव स्ट्रक्चर अगर फिक्स कर देना तो वो बंदे खुद निकाल लेंगे अपना शायद system, हाँ, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा सा आई एम ऑलवेज बुलिश अबाउट पाकिस्तान. I hope to see Honestly, a good I'm always Pakistan. bullish about Sir, thank you so much for coming in and sharing all that insight. And Thank for you all of so you guys, much. thank you so much for watching. अगर आपको एपिसोड पसंद आया दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा. नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे आके बताएं what do you think about doing an IT services business, particularly engineers. मुझे आके बताएं क्योंकि वो हमेशा बोलते रहते हैं कि कोई काम धंधा नहीं है पाकिस्तान के अंदर. So what are you guys doing आजकल? Do you think इस किस्म का इंडस्ट्रीज के साथ आप कोई काम कर सकते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? व्हाट आर योर थॉट्स? बट एनीवेज, दिस वाज सैयद मुज़म्मिल हसन ज़ैदी. You are watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching and I'll see you in the next one.